Very good afternoon to all our dignified participants. Uh, Pleased to see you all. Always, you people are so dedicated towards the session that before 5 minutes, maximum of our participants join the session. Thank you so much for your dedication. In a while, we'll be starting with the session. Thank you.
टॉपिक्स के बारे में, पर्टिकुलर 3 यूनिट्स के बारे में अपना नॉलेज एनहांस किया. रिगार्डिंग sir, who is a junior research fellow under the University Grant Commission. Sir has taken a session, a very nice and depth session on logical reasoning and aptitude. So that session was a good journey on logical reasoning, and it proved that research is a journey and logical reasoning is a compass for that. So that was a delightful session in which we have already enhanced our logical skills. If we'll talk about the day 2 session, that session was conducted by Dr. Vipin Patel sir from Mahakaushal College, which is a lead college, PM Shri College. Sir has taken a session on mathematical reasoning aspects and aptitude. By that session, we encashed a lot on mathematical reasoning and aptitude, and we enhanced our approach towards quantitative aptitude. Even that session was a mind-blowing session. The third session was all about communication skills. Ma'am Divya Hazare was the mentor or the expert of that session. In that session, we have learned a lot about communication and teaching aptitude. So moving forward towards the day 4 of our FDP, greetings. I'm coming up to the formal session now. Greetings to all the honorable dignitaries, heads of all the department, faculty members, and different dignified participants of different fraternities. Welcome to day 4 of our FDP on NetSet preparation. As before, I, Dr. Kalpana Singh, will take the session flow ahead. Today, we will focus on data interpretation and ICT tools for teaching and research. Our session includes data interpretation strategies and leveraging ICT for effective teaching, for which the expert speaker today is Dr. Anjali Chaudhary. Introducing Dr. Anjali Chaudhary ma'am to you all. She is a net qualified lady, a gold medalist in her Masters of Computer Science. Currently, she is serving as an assistant professor at Medicaps University, Indore, Madhya Pradesh. So, to go ahead further with the session, I would be seeking permission from our respected principal ma'am and the convener of the program, Dr. Kirti Vishwakarma, to go ahead. Ma'am, shall we? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, I'm requesting Anjali Chaudhary, ma'am. Ma'am, are you there in the session? Have you joined? Good afternoon, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am, you are audible. Ma'am, just requesting you, are you there with your slides? Would you be presenting the slides, or you want us to do the same? Ma'am, yes, ma'am, I am with my slide, and I seek your permission to share my presentation on this. Ma'am, already we got the permission from principal, ma'am. You can go ahead, ma'am. Thank you so much. Over to you, ma'am. Yes. Ma'am, please confirm, is my slides are visible to you all? Yes, ma'am. They are visible, and you are also audible, ma'am. Okay. Thank you so much. So, very warm afternoon to the dignitaries, organizing team of Gyan Ganga College of Excellence, respected faculty members, participants from various institutions, and dear students. I am truly grateful to the organizers of this FDP for inviting me as a resource person today. Thank you for your trust and this valuable platform to share and learn together. So let us begin our session on data interpretation and ICT, an important area for UGC. Excuse me, ma'am.
Sorry, Yes, ma'am. ma'am. Sorry for interrupting you. Ma'am, some voices are coming from the back. If you can adjust the voice Uh, settings. yes, ma'am. Actually, I have to change my headphone. Can I do it मैम now? प्लीज गो ahead with that मैम एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स बहुत ईगर होते हैं Yes. एक्सपर्ट्स के लिए सो अगर Okay, आप ma'am. Ma'am, just 1 minute. I थैंक will यू मैम just. श्योर मैम Yes. श्योर Okay. Meanwhile, I would be requesting all the participants also to get an enriched and delightful session. आप kindly अपने microphones को mute ही रखिएगा. Whenever some queries or questions are to be answered, at that time you can will unmute you people and kindly fill the attendance link whatever link we share and the feedback form regularly to get the certificate of this session of the complete FDP session as feedback and the attendance link are mandatory things to be followed. PPTs are shared by the experts every day जो हम group में daily float कर रहे हैं. I hope Dr. Anjali Chaudhary ma'am even would be doing the same today. Ma'am, hope you would be sharing the PPT. Ma'am is busy with some stuffs. And regarding the completion of the FDP, 75% plus attendance is mandatory. So I request, अगर first day due to some technical glitches आपका attendance या feedback form रह भी गया हो, please make sure that for rest of the days you have filled the feedback form. Apart from that, please assure this thing as we all are from dignified backgrounds and from esteemed institutions. So I request kindly do not fill the feedback form and the attendance link form only. It is mandatory to attend the session also. अगर आपकी presence होगी session में तो ये certification आपके लिए valuable है. As you all know that the set dates are already means extended. The dates of the set exam are somehow stretched and we have now time for preparation. So I think this FDP session would be a very big gain for the people who are about to crack the set exams. So kindly take the session on a very serious note. It would be useful for you and definitely it will give a charm and a groom to the organizers of the program of this FDP session in which there was a drastic support of our management members, specifically our executive director, engineer Vishesh Jain sir, and our endless supportive principal ma'am, Dr. Kirti Vishwakarma. So I request कि आप सेशंस को सीरियस नोट पे अटेंड करें, सिर्फ अटेंडेंस या फीडबैक फॉर्म भरकर सेशन लीव ना करें. Thank you so much to all. Though all the participants are taking the sessions on a very serious note, so gratitude on behalf of Gyan Ganga Group of Institutions to you. Thank you so much. Ma'am, are you done with your preparations? Chaudhary ma'am? Hello. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Properly audible. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, please let me know if there are any issue in audio, please. Sure, ma'am. Ma'am, you can share your slides. We are done with our preparation. You can go ahead. Okay, okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Actually, I'm extremely sorry, and now I'm again sharing my slides. So please, just a second. Ma'am, one more request. If you could be bilingual in your session, as some participants seek both the languages. अगर आप bilingual local बताएंगे तो शायद वो ज़्यादा convenient हो जाएगा सारे participants के लिए. Okay, okay. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, my slides are visible now. Yes, ma'am. It's visible. Okay, thank आप you. मैम slide share कर दे मैम तो वो थोड़ा
Yes, thank you. Okay, okay, thank you. So, uh, once again, welcome to all. Now, let's start our session, today's session, which is based on data interpretation and ITC. So, UGC नेट जो कि हर एक स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन फील्ड में आगे जाना चाहता है या फिर रिसर्च वर्क में आगे जाना चाहता है, तो ही ऑलवेज चूज यूजीसी नेट और जेआरएफ फॉर दिस टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, तो किसी भी एग्जाम को चाहे वो यूजीसी नेट हो या एनी अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स हो, यदि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस। Okay, so today's session is based on data interpretation and ICT, that is information and communication technology. So ये जो है, यदि हम अपने UGC नेट के सिलेबस को देखते हैं, जो हमारा पेपर 1 है, so there are 10 units and data interpretation belongs to unit 7 and ICT belongs to unit 8. Okay, so सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस यूनिट को के टॉपिक्स को एक बार रीड कर लें, है ना, कि आप इस यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन। सो लेट्स स्टार्ट ना। फर्स्ट पार्ट जो मैं जो आपको दो पार्ट में डिफाइन करूंगी। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, यदि हम इस दो वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो फर्स्ट वर्ड इज डेटा एंड द सेकेंड वर्ड इज इंटरप्रिटेशन। सो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज डेटा, राइट। सो बीइंग अ स्टूडेंट, है ना, विच एवर फील्ड वी आर बिलोंग्स फ्रॉम, हम किसी भी फील्ड के हों, है ना, हम हमेशा डेटा के साथ वर्क करते हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यदि हम देखें तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना। बट here in the collectively context of UGC net, collectively data को हम कैसे define करेंगे? Data means it can be facts, figure or any kind of information जो कि analysis के लिए collect की जाती है। Okay, so जब हमें ये मालूम हो जाता है कि what is data, then where is the source of data comes from? डेटा जो हम डेटा इंटरप्रेट, जो क्वेश्चंस हमसे यूजीसी नेट आस्क कर रहे हैं, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस व्हाई दे आर टेकिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू अस, बिकॉज हम हायर एजुकेशन में एक रेपुटेटेड पोस्ट पर जाने वाले हैं। हम जाकर एक रिसर्चर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम नेट एग्जाम देते हैं, तो हमको वहां पर जाकर डेटा पे वर्क करना होगा। तो डेटा हमें कहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम? तो देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स जो हम डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं। इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन। आपने देखा होगा कि किसी भी टॉपिक पर एक छोटा सा सेशन हमारे जितने भी सीनियर फैकल्टीज लेते हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चनायर आपको के लिए एक गूगल फॉर्म शेयर कर देते हैं। सो व्हाट वाज दैट गूगल फॉर्म? वो एक मीडियम है डेटा को कलेक्ट करने का। ओके, आफ्टर टेकिंग ऑल द क्लासेस, लाइक एक सेमेस्टर की हमारी क्लासेस हो गई, देन जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्टूडेंट्स के फीडबैक को भी एज अ डेटा लेती हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है ना। और इसके अलावा जो डेटा है मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल, यहाँ पर भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा मीन्स व्हाट? सेकेंडरी डेटा मीन्स वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है। सपोज कि हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। अब हमें एक रिसर्च पेपर राइटिंग करनी है और हमको एक नया एल्गोरिथम डिजाइन करना है। अब नया एल्गोरिथम डिजाइन करना है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले पुराने रिसर्च पेपर या पुराना डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है वहां से रेफरेंस करके अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को उसमें इम्प्लीमेंट करके न्यू आइडिया या न्यू एल्गोरिथम प्रपोज करना है। सो सेकेंडरी डेटा मीन्स व्हाट? जो ऑलरेडी कलेक्टेड है बाय समवन एल्स, बस हमको वहां से उस डेटा को लेकर उस पर वर्क करना है। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स लाइक सेंसस डेटा,
government records, journals, research papers, yeah, institutional reports. These all are already collected by someone else. So all these are belongs from secondary data. Now, how data is collected? डेटा कैसे कलेक्टेड होता है? तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको पहले डिफाइन करूंगी, देन वी विल डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डीआई एंड मैं उसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि कैसे कॉम्प्लेक्स डीआई को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है? पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, मतलब पॉपुलेशन में यदि हम कोई डेटा ले रहे हैं, इट्स मीन्स हमने पूरी कंप्लीट ग्रुप को लिया है, ओके, एंड सैंपल मीन्स व्हाट, उस पर्टिकुलर ग्रुप में से किसी एक पार्ट को हम लेकर डेटा उससे लेकर फिर उसको सबके लिए जनरलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, लाइक सेंसस मेथड जो कि पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई की जाती है, ओके, सैम्पलिंग मेथड जो क्या करता है, सिर्फ एक पार्ट को लेकर उस पर अप्लाई किया जाता है, एंड देयर आर सम टूल्स आल्सो, ऑनलाइन सर्वे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. Now, classification of data. As I have listened all the previously lectures from the prestigious experts, and उन्होंने quantitative data and qualitative data बहुत अच्छे से define किया है. So I just highlight some things like define, क्योंकि हम data interpretation पढ़ने वाले हैं, तो एक बार हम data of classification भी यहाँ पर देख लेते हैं. Quantitative data means जो भी न्यूमेरिकल डेटा हम ले रहे हैं, जो कि मेजर्ड किया जा सकता है या उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. फॉर एग्जांपल मार्क्स, एज, इनकम, दीज ऑल एग्जांपल्स आर, यू सी, ऑल आर काउंटेड और मेजरेबल, ओके. सो देयर आर टाइप्स आल्सो. डिस्क्रीट डेटा मींस काउंटेबल, लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, है ना. मेजरेबल डेटा लाइक हम कोई मेजरमेंट करके जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक उनकी हाइट, तो यदि हमें किसी की हाइट जाननी है तो हम उसको मेजर करते हैं एक स्केल पर, है ना. टाइम है तो हम उसको सेकेंड्स और उसमें काउंट्स करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे हम उसको डिफाइन करें, दैट इज कंटिन्यूअसली डेटा. ओके, नाउ क्वालिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा मींस सम डिस्क्रिप्शंस आर देयर, ठीक है. ऐसा डेटा जो किसी क्वालिटीज को, कैटेगरीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे सपोज हमने एक डेटा लिया जिसमें जेंडर है, तो हम उस जेंडर पे क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि आइदर जेंडर इज मेल और फीमेल, और देयर आर आल्सो अनदर ऑप्शन इज अवेलेबल. नेशनैलिटी. नेशनैलिटी मीन्स हम यहाँ अगेन क्लासिफाई कर रहे हैं द पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रॉम इंडिया और अदर देन इंडिया. टीचिंग स्टाइल, किसका टीचिंग स्टाइल कैसा है. स्टूडेंट ओपिनियन, सपोज हमने स्टूडेंट्स को कोई फैक्ट या कोई भी एक स्टोरी सुनाई या कोई भी हमने उसे कॉन्सेप्ट बताया, तो उस कॉन्सेप्ट को कितने स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं और डिसएग्री कर रहे हैं. तो इस टाइप से हम क्लासिफाई करके, डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. सो कोडिंग, थीम्स, चार्ट्स, ये सारे जो है क्वालिटेटिव डेटा के कैटेगरी में आते हैं. Now come to the our main topic, DI, that is data interpretation. Okay, data interpretation is what? Data तो मैंने आपको बता दिया, what is data and different kinds of sources, how can we collect, all these मैंने define कर दिया. अब interpret means what? Interpretation refers to the ability to read, understand, analyze, compare and draw logical conclusions. Means हमारे पास डेटा ऑलरेडी हमें गिवन है, सारी चीजें हमें गिवन है, बस वी हैव टू इंटरप्रेट दैट डेटा. हमको उस डेटा को रिलैक्स होके, जैसे हमें एक डीआई क्वेश्चन आया है, हमको उस डेटा को समझना है, इंटरप्रेट करना है कि उसमें किस तरीके से क्लासिफाई किया है डेटा को, कौन सी वैल्यू कहाँ से हम रिट्रीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेट. So data interpretation is very I think interesting topic, because in UGC net direct हमें 5 questions of 10 marks पूछे जाते हैं पेपर 1 में, सेम फॉर सेट, बिकॉज UGC net का सिलेबस ही फॉलो होता है सेट एग्जाम्स के लिए. सो अगर हम इन 5 मार्क्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करते हैं तो सीधा सीधा हमको 10 मार्क्स मिलेगा. ओके, तो उस 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से समझना. ओके, सो डीआई जो है यूजुअली
ये जो आप दिख रहे हैं इन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। लाइक हमें क्वेश्चंस में टेबल्स दे दिए जाएंगे, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, मिक्स चार्ट, ये सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स या टाइप्स ऑफ डेटास हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनसे इंटरेक्ट हम हुए ही हैं। मोस्ट ऑफ द यूजीसी नेट जो है टेबल बेस्ड डेटा हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे यूजीसी नेट के, तो आपको मोस्टली जो डीआई है वो टेबल बेस्ड ही मिलेगी। उसके प्रीवियसली ग्राफ्स भी बहुत मतलब एग्जाम्स में आए हैं, बट अभी रिसेंट में टेबल्स वाला उनका फेवरेट टॉपिक हो गया है डीआई में। ओके, सो टेबुलर के अलावा देयर आर अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट, हमें जो डेटा है वो किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, किस फॉर्म में हमें एग्जाम में आ रहा है, पिक्चर के फॉर्म में और ग्राफ्स के फॉर्म में। ओके, so there are some types of graphical datas like as I have already mentioned bar chart, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करना चाहती थी बट वो हो नहीं पाया, बट आई नो ये सारे टाइप्स आपने, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने ये देखे जरूर होंगे। बार चार्ट इज यूज्ड, व्हाई इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्टली हम बार चार्ट ही प्रेफर करते हैं। इवन मैं भी अपने रिसर्च पेपर में बार चार्ट को ही प्रेफर करती हूँ अपने डेटा को क्लियरली विजिबल बनाने के लिए। देन हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डेटा, लाइक हमको किसी प्रकार की कंटिन्यूअसली डेटा फ्रीक्वेंसी बतानी है ना, तो हम हिस्टोग्राम डेटा को यूज करेंगे। लाइक किसी की हाइट होगी स्टूडेंट की या फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वी गो विद हिस्टोग्राम। Then next graphical representation of data can be done with pie chart also. So pie chart में भी हम slices के फॉर्म में, आपने देखा होगा एक स्लाइस होती है गोल राउंड सर्कल में, एंड देन स्लाइसेस में हमारे डेटा को कैटेगरीज करती जाती है। लाइक हमें किसी प्रकार का परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, बजट एलोकेशन बताना है, पॉपुलेशन भी शेयर करनी है। इवन आप कोई मार्कशीट डिजाइन कर रहे हैं और आपको उसमें नंबर ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स, हाई नंबर परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स का यदि रेशियो या फिर क्लासिफाई करना है, तो वी गो विद द पाई चार्ट आल्सो। लाइन चार्ट यूज्ड टू शो ट्रेंड ओवर टाइम, लाइक पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है ओवर 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक, स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेंड कर रहा है, तो वहां पर मोस्ट ऑफ दी जो स्टॉकर्स होते हैं वो लाइन चार्ट को ही यूज करते हैं। देन डेटा चार्ट, टेबल चार्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूजीसी नेट जो है जितने भी क्वेश्चंस अभी हमें रिसेंटली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, दैट आर टेबल चार्ट, है ना। टेबल चार्ट मींस जो डेटा है हमको रो और कॉलम के फॉर्म में गिवन होगा। Then there are also another representation of data is mapping of data. ये थोड़ा सा बड़े लेवल का हो जाता है, जहां पर हमारा जो डेटा है वो ज्योग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है। लाइक हमको एक डेंसिटी मैप दे दिया गया है कि इस पर्टिकुलर मैप में पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है। सपोज एमपी में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उसको हमने एक ग्राफ के फॉर्म में, एक मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसमें से क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अराइज हो सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो आफ्टर दिस हमें डीआई को सॉल्व करने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें आने ही चाहिए। बिकॉज मैथ्स जो है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारी क्लासेस में मैथ्स इज वेरी कंपलसरी, एंड इफ यू आर फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ साइंस तो आपको तो ये आता ही होगा, है ना। तो बट इसमें से कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज परसेंट। ऑलवेज जो भी क्वेश्चंस डीआई पूछेगा आप देखेंगे उसमें परसेंट इंक्रीमेंट और परसेंट डिक्रीमेंट जरूर पूछता है यूजीसी नेट, है ना। देन रेशियो से रिलेटेड एवरेज, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस, लाइक कितनी ग्रोथ हुई, कितना परसेंट ग्रोथ किया, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके यूजीसी नेट में आते ही हैं। So what was that? What is this? This is where calculation plus logic plus understanding are tested. Means UGC नेट यदि आपको एक DI सॉल्व करने के लिए पेपर में दे रहा है तो वो ये उनको पता है कि आपको आता है, yes, but for cracking an exam what we have to do, हमको उस डेटा को इंटरप्रेट करना है, समझना है,
टाइमली कैलकुलेट करना है, तभी हम उस एग्जाम को या उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. These are some important formulas. परसेंट चेंज के लिए परसेंट इंक्रीमेंट, परसेंट डिक्रीमेंट, रेशियो, एवरेज, कंपैरिजन मींस हम दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम ऑब्वियसली उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे ना. इसके अलावा मैथ्स की आर्य सब्रवाल की बुक मैंने जो पढ़ी, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल्ड. और देयर आर सो मेनी शॉर्टकट ट्रिक्स आल्सो अवेलेबल फॉर प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चंस, तो वो भी आप जा सकते हैं. बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है. और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक आप भी जानते हैं कि यदि हमको मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अपनी कमांड लानी है तो वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, थ्री थिंग इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली: प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. अगर हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, मतलब अगर सपोज हमारा एग्जाम 1 मंथ बचा है तो उस 1 मंथ के ड्यूरेशन में डेली हमको एक DI सॉल्व करना है. डेली आपको, यदि आप अभी तो दिसंबर वाले एग्जाम्स का शेड्यूल आ गया है, बट जब भी आपका कोई एग्जाम हो तो आप 1 मंथ पहले रोज एक DI सॉल्व करें. आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, उसमें से एक DI, वहां पे आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है. सो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी DI को सॉल्व करने के लिए, और आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी, जिससे आपका ही जो है इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है. सो there are another topic of our DI syllabus, that is data and governance. So what is governance? Governance means how governments use data for decision making. अब हमें DI तो आ गया एग्जाम में और हमने उसको सॉल्व कैसे करना ये भी जान लिया, पर क्यों, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों हम डेटा को इस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यही डेटा जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आगे पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में, बजट बनाने में, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देने में यूज होता है. So these are some uses of governance like policy, budget, public welfare planning, education policy, digital governance. ये सारे जो है गवर्नमेंट क्या करता है, इन सारी चीजों को फ्रेम करने के लिए इस डेटा का यूज करता है. नेक्स्ट देयर आर सम डिजिटल इनिशिएटिव्स. ये इनिशिएटिव्स आई थिंक UGC नेट का एग्जाम का जो सेक्शन स्टार्ट होती है, आप ये सारे जो हैं इनिशिएटिव्स को कई बार गो थ्रू कर चुके हैं, सो आपको इनकी इंपॉर्टेंस भी पता चल गई है. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दीस पॉइंट्स हियर. डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में ये जो है मेन है हमारे डिजिटल इंडिया, आधार, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, स्वयं पोर्टल एंड ई-गवर्नेंस, स्वयं एनालिटिक्स एंड ई-गवर्नेंस पोर्टल. दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट for the context of data. Now to better understand the data interpretation, here I am taking an example. So I just take this example to elaborate how can we solve the questions, right? So यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि पेशेंटली हम इस क्वेश्चंस को रीड करेंगे. देन इस क्वेश्चन से हमें पूरे 5 क्वेश्चंस जो हैं एसोसिएटेड हैं. यदि हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें पूरे 2 मार्क्स, मीन्स हमें 10 मार्क्स मिलने के, इजिली हमें 10 मार्क्स मिल जाएंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट होता है DI में समझना, राइट? तो हम पहले क्वेश्चंस को समझेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? The following table shows the number of students and the percentage of girls who passed in 10th examination from 6. Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. Ma'am, if you could zoom the figures, आप अपनी तरफ से अगर स्लाइड को थोड़ा zoom कर पाए, though it is I think full screen है, but figures ma'am थोड़ा visible हो जाएंगे participants. Okay, ma'am. I'm trying to zoom it. Okay, ma'am. Yes. Is it visible now, ma'am? Please let me know. Yes, ma'am. It is visible. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. So, here is the question. The following table shows the number of students and the percentage of girls who pass in 10th plus 2 examination
फ्रॉम 6 डिफरेंट स्कूल्स। लाइक अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हमें समझना है ना। अभी मैं आपको आराम आराम से समझा रही हूँ, बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है ना। दिस इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो हमें समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया क्या है। हमको स्कूल्स दिए हुए हैं ए से लेके एफ तक, मींस देयर आर 6 स्कूल्स व्हिच आर नेम्ड एज ए टू एफ। देन नंबर ऑफ पास, अब यहाँ पे हमें 2 ईयर्स दिए हुए हैं, एक है हमारा 2023 एंड द नेक्स्ट इज 2024। तो 2023 में जो है नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, मतलब यदि स्कूल ए है तो उसमें यदि पास स्टूडेंट है 500, तो उसमें से परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल्स, मींस यहाँ पर हमको पास स्टूडेंट्स का नंबर दिया हुआ है और उस पास स्टूडेंट में से गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है कि 46% ऑफ गर्ल्स आर पास्ड फ्रॉम 500 स्टूडेंट्स। सिमिलरली इन 2024 ऑल्सो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 550 एंड देन परसेंटेज ऑफ पास गर्ल्स, मतलब गर्ल्स जो है 550 के 44% गर्ल्स जो है 2024 में ए स्कूल में पास हुई हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन हमने समझ लिया सबसे पहले कि क्या है हमें। अब नाउ वी गो टू द associated questions of this questions, right? So just a minute. Okay, so our first question is what is the ratio of the number of boys who passed from school A in 2023 to the number of girls who passed from school E in the year 2023। मतलब यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो। क्या लिखा है 2023, मींस देयर आर 2 क्वेश्चंस, बट जो ईयर है हमारा 2023 के लिए ही है। इट्स मींस हमें तो 23 और 24 का डेटा दिया हुआ है, बट यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 2023 को ही देखना है, 2024 को नहीं देखना है, सबसे पहली चीज। अब इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम स्कूल, मतलब 2023 में जो स्कूल ए के बच्चे हैं, उन बॉयज हैं उनका नंबर, और 2023 में जो ई स्कूल के बॉयज गर्ल्स हैं उनका नंबर, उनका हमें रेशियो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो सिंपल सा है, हमको क्या करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स है 2023 के बॉयज का नंबर और 2024 की गर्ल्स के नंबर का एवरेज निकालना है। बट इन अवर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, ओनली परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल्स, मींस हमको पहले इस गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सपोज यहाँ पर जो है 500 दिया हुआ है, तो हमें पहले 500 का 46% से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्चुअल गर्ल्स, तो हमको गर्ल्स के नंबर पता चल जाएंगे। देन when we minus the number of girls to the total number of past students, we get the number of boys. Let me show you a clear solution of this question. So देखेंगे हम यहाँ पर जो स्कूल ए है उसमें गर्ल्स का परसेंटेज कितना 46% है, तो 46% ऑफ 500, what will be the 46% of 500? Simply we just open it and calculate the percentages of 46% of 500 and then we get 230 girls ना। बट हमको रेशियो के लिए क्या चाहिए है, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड, और बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पास्ड। तो परसेंट ऑफ गर्ल्स पास्ड गर्ल्स से हमने क्या किया, गर्ल्स का नंबर निकाला, और टोटल में से यदि हम गर्ल्स का नंबर माइनस कर देंगे तो हमें 270 नंबर ऑफ बॉयज फॉर स्कूल ए मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन में एक कि ई स्कूल के जो है गर्ल्स का रेशियो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गर्ल्स का रेशियो, बट पहले स्कूल ए में क्या बोल रहा था, बॉयज का रेशियो, बट ई वाले स्कूल से गर्ल्स। तो ई स्कूल में टोटल हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं पास 600, एंड देन यहाँ पे हम डायरेक्ट 54%, क्योंकि गर्ल्स का ही हमें नंबर चाहिए है, तो हम गर्ल्स का 54% ऑफ 600 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमको जो है
गर्ल्स के नंबर मिल जाएंगे 324 एंड देन हम बॉयज और गर्ल्स दोनों का रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा 5:6. सो दिस विल बी आवर आंसर. ये तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. किसकी बात कर रहे हैं, बॉयज की बात कर रहे हैं या गर्ल्स की बात कर रहे हैं, उसको हमें क्लियर करना है. ठीक है. Now we take second questions of this question, major question, that is यहाँ पे हमें देखो एक tricky questions है. Data interpretation is really not easy, but it is easy if you are capable of doing all the operations smartly. है ना. यदि हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिखता है बट हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So the next question is, number of boys who passed in the examination is more than 300 in the year 2023. मतलब 2023 में ऐसे कितने बॉयज हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा स्कोर किया है, as well as in 2024 in only school. 2023 में भी पूछ रहा है वही चीज और वही चीज हमें 2024 में पूछ रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बॉयज हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा मार्क्स जो है गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं. तो हमको बताना है कि ट्रू है, 3 है, इस तरीके से. तो हम इसको यहाँ पे अगेन आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस वेरी इजीली. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें सिंपली सारे A to F स्कूल्स दिए हुए हैं, उसके करेंट करस्पॉन्डिंग पास्ट स्टूडेंट्स है. आपको इस तरीके से टेबल अपने रफ शीट में ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन, मेरा एक सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी आपको DI क्वेश्चन आता है ना, तो आप उस क्वेश्चंस को पढ़ो और उसके पांचों क्वेश्चंस एसोसिएटेड सारे पांचों क्वेश्चंस को पढ़ो. तो उससे हमको एक मैपिंग हो जाती है कि हमको इस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप की मेथड्स अप्लाई करनी है. तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करते हैं ना, तो बाकी के जो 3-4 छोटे-छोटे क्वेश्चंस वो इजीली सॉल्व हो जाने हैं. तो अब यहाँ पे हमसे उन्होंने पूछा है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा स्कोर किया है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि बॉयज पूछ रहा है ना, बॉयज, रिमेंबर बॉयज वर्ड, और हमें क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल्स दिया हुआ है. तो सबसे सिंपल, जितने भी हमें स्कूल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग पास्ट स्टूडेंट्स थे, हम उसके परसेंटेज की वैल्यू, मतलब गर्ल्स की वैल्यू का परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेंगे कि गर्ल्स कितनी है. तो जैसे 500 का 46% निकाला, अभी हमने सॉल्व ही किया था ऑलरेडी. तो व्हाट वी विल गेट 230 ना, हमें क्या मिला था 230. तो 500 माइनस 230, देन हमें बॉयज का नंबर मिलेगा 270. सेम चीज हम अप्लाई करेंगे फॉर ऑल दी स्कूल्स डेटास, है ना. सारे गर्ल्स के परसेंटेज से हम पहले गर्ल्स का नंबर निकालेंगे और टोटल पास स्टूडेंट से गर्ल्स का नंबर माइनस करेंगे. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर 2023 हमें नंबर ऑफ बॉयज पता चल गए. सेम हम यहाँ पर आ जाएंगे 2024 के लिए, सेम हमें गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है, हम पर्टिकुलरली नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स का 44% कैलकुलेट करेंगे. देन हमें अगेन गर्ल्स के नंबर मिलेंगे, then that number will be minus by total pass students. 242 minus by 550, we get 308. That is the number of passed boys. So क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा स्कोर किया है. तो अगर आप 2023 के लिए देखते हैं तो यहाँ पर 340 सिर्फ 2 ही नंबर दिख रहे हैं ना, जो जैसे 348 एंड 325, जो कि 300 से ज्यादा है. बट अगर हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखें 384 जो हाईलाइटेड है वो तो है ही, बट देयर आर आल्सो 308 आल्सो एंड 378 आल्सो. सो अगेन कंफ्यूज करना ही DI जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही होता है ना. वो जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आप कितने लेवल तक जाके अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चंस हम एक बार और रीड करेंगे. क्वेश्चन क्या था, number of boys who passed in the examination is more than 300 in the year 2023 as well as in 2024. means क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर ये है कि 2023 as well as 2024, मतलब दोनों में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे कौन से स्कूल है जहाँ के बॉयज ने 300 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं
2023 में भी और 2024 में भी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कॉमनली बी स्कूल हैज मोर देन 300 मार्क्स एंड एफ स्कूल फॉर 2023 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी बी स्कूल एंड एफ स्कूल जो है 300, क्योंकि ये दोनों एज वेल एज 2023 एज वेल एज 2024, सो दोनों जो है कॉमन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 2 ग्रुप्स। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2। आई रियली होप कि आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the average number of boys who passed in the 10+2 examination in the year 2024 from all the 6 schools together? This is very simple question, very simple questions. All from all the given 5 questions, this question is really very easy क्योंकि इसमें डायरेक्टली पूछ रहा है कि 2024 के एग्जाम को पास करने वाले जो बॉयज हैं उनका एवरेज नंबर क्या होगा, है ना। तो इट इज वेरी इजी, है ना, एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट ऑल द नंबर ऑफ बॉयज इन अवर प्रीवियस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है हमें कि हम ये फाइंड आउट करें कि एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज क्या है बॉयज का, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा सॉल्व किया ही हुआ है, देन हम उसका सीधे सम करेंगे एंड वी विल टेक एवरेज ऑफ दैट सम एंड वी गॉट 379 is the answer. So average, I know average is very easy और average का formula हमें भी मालूम है, then what we get 379. So इस question का answer very easy is 379. Now we left 2 more questions. Then I will proceed further. The next question is for school F. यहाँ पे F स्कूल की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, है ना। फॉर स्कूल F द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन द ईयर 2024 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट, मतलब कितना परसेंट ज्यादा है 2023 के, ठीक है। मतलब 2024 में जो बच्चे स्कूल F के जो बॉयज हैं वो पास हुए हैं, वो कंपेयर करके बता रहा है कि 2023 से कितना ज्यादा है, 2023 कितना परसेंट जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है डायरेक्ट परसेंट इंक्रीमेंट और परसेंट डिक्रीमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो वन थिंग यू विल गेट व्हाट कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें देखिएगा आपको इनडायरेक्टली परसेंट इंक्रीमेंट या परसेंट डिक्रीमेंट का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मेरी सभी एस्पिरेंट से नेक्स्ट एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर करके जाएं, है ना। तो यहाँ पर वी जस्ट सिंपली यूज अ परसेंट बिकॉज यहाँ पे परसेंट मोर देन दैट पूछा है तो हम परसेंट इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस स्लाइड्स, है ना। तो एफ स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं ऑलरेडी एंड for 2023 and for 2024 also for percent increment हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारी जो भी वैल्यू है इनिशियल वैल्यू 325 और 2023 से, देन हम उसका परसेंट इंक्रीमेंट के फॉर्मूले में अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट 47.7, है ना। इसको हम पूरा राउंड ऑफ करेंगे तो 47.7 हमें वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी अवर आंसर। तो मेरा ये है आपको सजेशन कि आप परसेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करके जाएं। Now the last question, the last associated question is that the average number of girls who passed in the year 2024 from all the 6 schools is percent of the number of students who passed from school A in the year. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो हम इसको बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन द ईयर 2024 फ्रॉम ऑल द 6 स्कूल्स, मतलब 2024 ईयर में सारे के सारे स्कूल्स मतलब A to जितने भी 6 स्कूल्स हैं उन गर्ल्स का हमको एवरेज चाहिए है, वो कितना परसेंट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम स्कूल ए इन द ईयर 2023, मतलब 2024 की सारी गर्ल्स का परसेंट जो है 2023 में एक स्कूल है A स्कूल, उसके पास भी स्टूडेंट से कितना परसेंट है, मतलब डायरेक्ट परसेंट ये इसका कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन को उसने घुमा के पूछ लिया है। तो लेट ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन।
तो as we have already calculated all the values, all the number of girls, number of boys हमने पहले ही previous question solve कर चुके हैं. तो average 2024 में average number of girls क्या है हमारा 311. Then ये 311 जो है कितना % है? Let me show the main question actually. Just a sec. ओके, सो जो एवरेज नंबर जो हमने निकाला है 311, वो आई होप आप मेरा कर्सर को देख पा रहे हैं, वो ए स्कूल में 500 का कितना % है ना. तो जो भी हमारी अननोन वैल्यू है हम उसको x कंसिडर कर लेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट इट बाय दिस फॉर्मूला. वी कैन से दिस है ना. सो 500 का कितना % 311 होगा. तो वी से हियर x एंड देन अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी गेट 62.2 एंड दिस विल बी आवर आंसर. सो इस तरीके से आपने देखा. आई नो कि DI जो है बहुत टाइम टेकिंग है एक्चुअली. मैंने भी कुछ अटेम्प्ट्स, मैं एक बार मेरे साथ बहुत मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. आई जस्ट टेक अ DI और मैंने सोच के रखा था कि मैं तो आज इस DI को सॉल्व करूंगी एंड मैं वो एग्जाम में उस DI को मैंने लिया और उसको सॉल्व करा. और बट मैंने क्या किया, मैंने एक जिद कर ली कि मुझे तो ये DI सॉल्व करना ही है. मैंने उस DI को सॉल्व करने के लिए अपना 40 मिनट्स वेस्ट किया जस्ट सेटिस्फाई माय ओन ईगो कि नहीं मैं तो ये करके रहूंगी, ये तो इजी होता है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर इफ मतलब क्योंकि अगर हमारा प्लान ए वर्क नहीं करता तो प्लान बी, हमें हमेशा किसी एक चीज में नहीं भागना. अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है आपके एग्जाम में, है ना, मैं एक टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आपको एक ऐसी कंडीशन कि आपने 4 में से कोई एक क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो दैट टाइम आप उसको लास्ट में करने के लिए छोड़ दीजिएगा. क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसका ध्यान रख के आपको DI सॉल्व करना है और इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े. तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि अगर 1 मंथ एग्जाम डेट के 1 मंथ पहले से ही आप रोज एक DI सॉल्व करो. कुछ मत करो, आप अपना सब्जेक्टिव पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर 1 प्रिपेयर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस एक दिन में एक DI, क्योंकि एक दिन में एक DI से आप 10 नंबर प्रिपेयर कर रहे हो. तो now let's begin second question. So actually this questions जो है मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगी, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिकॉज वी हैव अनदर पार्ट ऑल्सो टू डिस्कस. सो आई एम जस्ट स्किपिंग राइट नाउ एंड कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next unit is information and communication technology, that is stand for ICT. Okay, so to understand the ICT, है ना, हम लोग बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी से रोज ही इंटरेक्ट हो रहे हैं. आप सोकर उठोगे और कुछ नया आ जाएगा. इवन आप जो मोबाइल में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो नहीं आ जाएगी, है ना. तो हमारा जो हायर एजुकेशन है, जो इंडिया में जो हायर एजुकेशन है, वो बहुत मेहनत करता है न्यू टेक्नोलॉजीज को हर ईच व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, ईच पर्सन को जो है पहुंचाने के लिए काम कर रहा है. तो ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? सारे कंप्यूटर सिस्टम. ध्यान से देखिए, सारे कंप्यूटर सिस्टम. इट्स मीन्स व्हाट, आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए. लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, जनरेशंस क्या है इसकी, रैम रोम स्टोरेज, ब्लॉक डायग्राम, है ना, कौन से पार्ट्स जो है ज्यादा, कौन सा स्टोरेज डिवाइस ज्यादा फास्ट है, मतलब ओवरऑल सारी चीजें. मतलब आपको ये पूरा पढ़ के जाना है. आपको वहां पे सिर्फ एक वर्ड लिखा है ना, आपको उसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से रीड करना है. देन नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट व्हाट इट इंक्लूड्स, इंटरनेट एंड नेटवर्क्स. अब इंटरनेट नेटवर्क्स मींस आपको इंटरनेट से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज, है ना, नेटवर्क्स टाइप्स, कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं नेटवर्क में, वो सारे आने चाहिए. कम्युनिकेशन टूल्स कौन कौन से हैं, डिजिटल स्टोरेज के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन यूज किए जा रहे हैं, मल्टीमीडिया, कॉन्फ्रेंसिंग, इन सारी चीजों के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं. तो ये सारे जो हैं, all these are comes under ICT, information and communication technology. मींस डिजिटली हम कैसे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं.
So there are some important ICT abbreviations. ये कुछ important abbreviations हैं. हालांकि these are so simple, but at the end of this slide I have mentioned lots of ICT abbreviations. तो आप please एक बार इसको go through कर लीजिएगा. These all are the abbreviations जो full form direct पूछता है. अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कि आपको इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज डायरेक्ट दी होंगी, है ना. लैंड, मैन, वैन डायरेक्ट पूछ लेता है फुल फॉर्म क्या है आपको, तो आपको ये सारे फुल फॉर्म्स आने ही चाहिए. एंड नाउ we go to some key ICT terms. कुछ ICT terms हैं like hardware. जनरली कंप्यूटर में अगर हम देखें तो हमें जो टॉपिक्स हैं बहुत इजी लगते हैं कि अरे हार्डवेयर तो हमें मालूम है, सॉफ्टवेयर भी हमको पता है, बट एग्जाम में ना वो आपको डायरेक्ट तो पूछ ले, क्योंकि देखो जब भी कोई क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है तो देयर आर सो मेनी लेवल्स, है ना. अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, जैसे कि मैडम ने भी प्रीवियस सेशन में बताया था कि हमारा जो है रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, है ना, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, ये सारे लेवल्स होते हैं. तो जब भी हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तो हर लेवल का क्वेश्चन हमको आता है. तो इजी लेवल का क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि हमको सिंपली लैंड का फुल फॉर्म पूछा एग्जाम में, हमको बन गया, वाह यार हमसे तो क्वेश्चन बन गया. बट नो, यहाँ पे देयर आर अनदर लेवल्स ऑल्सो. तो वह उस सिंपल से वर्ड को थोड़ा सा टफ बना के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो अगर जैसे हमारे फर्स्ट टर्म है हार्डवेयर, तो फिजिकल पार्ट्स जो हमारे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो इट्स मींस ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही हार्डवेयर है. सारे हार्डवेयर आपको पढ़ के जाने हैं. सिमिलरली यदि टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सारे जो है हमको पढ़ के जाना है ना. सॉफ्टवेयर इज व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, right. Then data means raw facts and figures, है ना. When we process the raw materials, data, we get information. तो ये हमको चाहिए कि information is a processed form of processed and meaningful data is called information. Then there are so many storage devices. तो storage devices भी हमें पढ़ने हैं, hard disk, pen drive, SSD and many more. पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, तो पेरिफेरल डिवाइसेस कितने हैं, कितने हो सकते हैं, है ना. जो भी हमें हर पॉसिबल टर्म्स जो है उसको इलेबोरेट करके पढ़ना होगा, राइट. So there are some basics terms like internet, intranet, email, audio, video conferencing. एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे, है ना. लाइक इंटरनेट है, तो हमको पता है कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन, है ना, जो हमारे पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है ना. तो वेरी सिंपल यूजेस ऑफ इंटरनेट आर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ई कॉमर्स, रिसर्च, सोशल नेटवर्किंग, है ना. इवन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा भी कोई काम होगा आपके दिन भर के शेड्यूल में जो आप बिना इंटरनेट के करते होंगे, है ना. हमारी आंख खुलने से लेके क्लासेस, व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने से लेके, है ना, टीवी देखने से लेकर, न्यूज सुनने से लेकर, इवन इतने सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियो प्लेलिस्ट होती है, उनको मतलब स्टडी एग्जाम के एक दिन पहले भी हम मोबाइल में इंटरनेट का यूज करके ही अपनी जो है टॉपिक्स को क्लियर करते हैं. तो इंटरनेट इज वर्सेटाइल. देयर आर सो मेनी सर्विसेज that represents the internet, like web browsing, है ना. तो web browsing, email, cloud, online learning, digital banking, these all are the services which are served with the help of internet. Okay, so there are types of computers, है ना. तो computers के types भी अगेन आईसीटी है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि कंप्यूटर जो है इसके टाइप्स क्या है. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करूंगी कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. एज यू ऑलरेडी नो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है, बट जब एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको बहुत ही उसको क्लियरली पढ़ना होता है. लाइक यहाँ पर अगर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट कैटेगरी इज कंप्यूटर को क्लास, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी क्लासिफाई कर दिया है. द फर्स्ट वन इज वर्किंग प्रिंसिपल. इट इज बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल. तो अगर हम कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बेस्ड पे देखें तो देयर आर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. अगर हम पर्पस मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए या जनरल पर्पस के लिए यूज करें, तो हमने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को. एंड बेस्ड ऑन साइज, साइज मींस छोटा है, देन अगेन उससे उसका साइज इंक्रीज हुआ, देन उससे भी आगे. तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर.
थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, लाइक एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वर्क विथ कंटिन्यूअस सिग्नल, मतलब जो कंटिन्यूसली डेटा पर वर्क करता है। अभी ज्यादा ये यूज नहीं होते हैं, बट हम इसको एज एग्जांपल देंगे, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर आर यूज, आर काइंड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। नाउ डिजिटल कंप्यूटर मीन्स व्हाट? डिजिट, द कंप्यूटर which can work with digits like either 0 or 1. 0 means off and 1 means on. As you know, computer जो है binary language समझता है, तो digital computers are works on 0 and 1. ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स, जो हम सारा डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. Then what is hybrid computer? Hybrid computer are the combinations of previous two computers like analog computer and digital computer. The computer which contains all the features of analog and digital. That is hybrid. तो साइंटिफिक और मेडिकल फील्ड में जैसे ईसीजी मशीन हो गया, यहाँ पर जो है कंप्यूटर्स जो हम देखते हैं दैट आर कम्स अंडर हाइब्रिड कंप्यूटर्स कैटेगरी. देन अगर हम बेस्ड ऑन पर्पस देखें तो यहाँ पर भी अगेन हम बाइफर्केशन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की. जनरल पर्पस कंप्यूटर मींस व्हाट? कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, मतलब जो किसी जनरल पर्पस, मतलब एक हमें लैपटॉप है, पीसी, ये हम नॉर्मली, मतलब जो भी हम नॉर्मल किसी काम कर रहे हैं वो हमारे जनरली जो भी हम सिस्टम यूज कर दैट आर कम्स अंडर इन जनरल पर्पस. बट स्पेशल मींस व्हाट? The computers which are defined to perform specific works. Specific works मतलब जैसे ATM है, उस कंप्यूटर का स्पेशल टास्क क्या है? पैसे के ट्रांजेक्शंस है ना, मनी से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना, सो दैट इज स्पेशल पर्पस. वॉशिंग मशीन है तो भाई वो तो सिर्फ हमें कपड़ों के से रिलेटेड ही काम कर पाएगा, है ना, वो तो हमको अपना रेज्यूमे क्रिएट करके देगा नहीं. तो द मशीन विच इज परफॉर्म ओनली अ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. Now next is based on size and power. So size and power के बेस पे हम देखें सुपर कंप्यूटर. ऑलवेज यूजीसी नेट, मतलब जब मैंने एग्जाम्स फर्स्ट टाइम, मुझे याद है कि जब भी मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था यूजीसी नेट का, तो मुझे सुपर कंप्यूटर का नाम परम आया था कि इनमें से कौन से कंप्यूटर सिस्टम है दैट आर कम्स अंडर सुपर कंप्यूटर ना. उसका आंसर परम था. तो ऑलवेज ये क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं. तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, साइज की बात कर रहे हैं तो साइज मींस व्हाट? सुपर कंप्यूटर्स जो है सबसे बड़े साइज के होते हैं, है ना, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, हायर कैपेबिलिटी के सीपीयूज इसमें यूज किए जाते हैं, एंड दे कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में, नॉट मिलियन, नॉट इट्स अ बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड. ठीक है, तो कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो ये सारे यूजेस हमको मालूम होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर वेदर फोरकास्टिंग विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वी विल यूज, सो दैट इज सुपर कंप्यूटर. स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर सिमुलेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, इन सारे फील्ड में जो है मेनली सुपर कंप्यूटर्स ही यूज किए जाते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज 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 करंट, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है वो करंट से भी रिलेट करके मींस आईसीटी है, तो ऑब्वियसली पूछेंगे कि अभी रिसेंट में कौन सा सुपर कंप्यूटर है ना. परम जो है इट्स बिलोंग फ्रॉम इंडिया, लाइक सुगाकू है इट्स बिलोंग फ्रॉम जापान, समिट है इट्स बिलोंग फ्रॉम यूएसए. तो ये हमें मालूम होने चाहिए कि कौन सी कंट्री के जो है सुपर कंप्यूटर्स का क्या नाम है, एंड करंट में कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है. लाइक आप सर्च करोगे तो चाइना के सुपर कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल हैं. आप जब इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी अबाउट कंप्यूटर्स एंड एज वेल एज सुपर कंप्यूटर्स. सो द नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे, मतलब थोड़ा साइज उनका कम हो गया, है ना. सो वेरी लार्ज कंप्यूटर्स बट लेस पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर. मींस इनकी कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर से कैपेसिटी और साइज थोड़ी सी कम होती है, बट ये अभी लार्ज कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं. सो व्हाट इट कैन बी डन, ये कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं? देन दे कैन हैंडल हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वो हजारों और हंड्रेड्स ऑफ एंड थाउजेंड यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं.
यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, जहाँ पर ज्यादा डेटा पे प्रोसेसिंग होती है वहां पर ये यूज किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंकिंग में, एयरलाइंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दे आर प्रेफरिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा होता है और उस पर हमें इंफॉर्मेशन और सारे ऑपरेशन प्रोसेस करने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज किए जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा भी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नेम्स जो है मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम, मतलब हम यहाँ पर देखो ब्रॉडर साइज लेके चल रहे हैं। सबसे सबसे बड़ा साइज जो हमारा था सुपर कंप्यूटर, देन उसके बाद आया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन उससे थोड़ा कंप्यूटर आया हमारा मिनी कंप्यूटर। तो स्मॉलर देन मेन फ्रेम्स बट स्टिल यूज्ड फॉर मल्टीपल यूजर्स एट वंस, है ना। मतलब ये मेन फ्रेम से तो कम है। और इन कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर्स कहा जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये वाले कंप्यूटर्स जो है हम और आप, मतलब जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। और इसको हम अफोर्ड करने के साथ साथ बहुत अच्छे से यूज भी कर सकते थे क्योंकि इजी टू यूज भी है। यूज फॉर मीडियम साइज बिजनेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, सर्वर एंड प्रोसेस, मतलब मीडियम साइज अगर बिजनेस ऑफिसेस वगैरह है, कोई कंपनी वगैरह में सर्वर्स या थोड़ा कम हमको डेटा हैंडल करना है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम, then we go to the mini computers. The next one is microcomputers. Microcomputer means personal computers like हमारा लैपटॉप हो गया, टैब, स्मार्टफोन, ये सारे जो भी हम easily यूजर फ्रेंडली अफोर्डेबली यूज कर पा रहे हैं, that are comes under in microcomputers category, है ना। जो कि एजुकेशन वर्क, अभी भी आप इस FDP को जो देख रहे हैं, that are also your microcomputer, है ना, like आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप जो whatever you are using. So these are the types of computer. नाउ कंप्यूटर के जनरेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन विच जनरेशन, किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से हर जनरेशन में जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि मैं रियली बता रही हूँ ये जनरेशन इज वेरी 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 थोड़ा सा मैसी हो जाता है पढ़ना, बट अगर हम उसको पॉइंट वाइज यदि देखें, लाइक हम हर एक जनरेशन उठाओ, किस जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो किस जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है ना। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हैं, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हैं, एंड देन आईसीज वगैरह आएंगी। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब्स है ना। एंड टेक्नोलॉजीज में क्या यूज की गई है, तो मैग्नेटिक ड्रम, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए व्हाट दे आर यूजिंग, दे यूज मैग्नेटिक ड्रम्स, है ना। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स यूज किए जाते थे, पेपर टेप यूज किए जाते थे, प्रिंट आउट्स यूज किए जाते थे। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो वहाँ जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, दे ओनली वर्क्स ऑन मशीन लैंग्वेज। मतलब अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स तो मशीन लैंग्वेज वर्क करते हैं, बट दे हैव आल्सो हायर लैंग्वेजेस, बट जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता था। सो हियर आर सम एग्जांपल्स आल्सो, ENIAC, यूनिवैक, IBM, है ना। अगर आप इनमें से इनके नाम याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। बट आप इसको एक बार रीड जरूर करिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, है ना। देन कुछ इसका इम्पैक्ट देख ले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, तो क्या था कि इट मेड्स लार्ज स्केल कैलकुलेशन पॉसिबल बट हैड फ्रीक्वेंट फेलियर्स, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत बड़े होते थे, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था, मतलब कमरे के बराबर, एक बड़े रूम के बराबर कंप्यूटर्स होते थे, और जब वो ऑन होते थे तो इतनी ज्यादा हीट जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं फर्स्ट जनरेशन के। देन आई सेकेंड जनरेशन, इन सेकेंड जनरेशन, है ना, in the place of vacuum tubes what they use ट्रांजिस्टर। मतलब सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ट्रांजिस्टर यूज हुई है। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर यूज हो गया तो अगर आप फिजिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही है कि ट्रांजिस्टर्स आर वेरी एफिशिएंट देन वैक्यूम ट्यूब्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रीवियस जनरेशन, है ना। दे आर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल। सो टेक्नोलॉजी यहाँ पर अगेन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज की गई, ट्रांजिस्टर यूज किए गए। इनपुट के लिए अगेन पंच कार्ड्स ही है, प्रीवियस में पंच कार्ड्स ही, मैग्नेटिक टेप ही चल रहे थे, मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट हमारे सेम है। देन प्रोग्रामिंग, अभी फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मशीन लैंग्वेज, बट इन सेकेंड जनरेशन देयर आर आल्सो असेंबली लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रान। तो ये सारी लैंग्वेजेस भी जो है प्रोग्रामिंग में इंक्लूड हो गई फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन, है ना। देयर आर आल्सो सम एग्जांपल्स, IBM 7094, UNIVAC 1108। देन
अब ये जो है, ये कंप्यूटर्स का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या इनका प्लस पॉइंट था कि ये जो है फास्टर है एंड प्रोड्यूस लेस हीट, क्योंकि अब यहाँ पर हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर। तो अब ये क्या हो गया, इनकी स्पीड तेज हो गई और जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी इनका जो है कम हो गया एंड यूज्ड इन बिजनेस एंड साइंस एंड बिजनेस में भी ये इजिली, मतलब थोड़ा सा उस टाइम एट दैट टाइम यूज किए जाने लगे थोड़ा सा है। then we comes to the third generation में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, so in third generation they use integrated circuits, ICs आ गए, जहां पे एक चिप में 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप में यूज किया गया है। इससे क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज कम हो गया, उसकी स्पीड, उसकी स्टोरेज जो है इम्प्रूव हुई है ना, कंप्यूटर ज्यादा एफिशिएंट हो गया है ना। तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी हुई आईसी, सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग जो है मैग्नेटिक कोर पे जा रहे थे, अब सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाने लगी। इनपुट आउटपुट के लिए अभी तक हम लोग पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप्स पे बेस है, अब हम यहाँ पर फ्रॉम द थर्ड जनरेशन नाउ वी यूज कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स, मतलब इसके बाद अब कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे जो है इनपुट आउटपुट के लिए यूज किए जाने लगे। इट्स बिगिन टू रिप्लेस पंच कार्ड्स। पंच कार्ड इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कार्ड वेयर हम उस पर पंच करके डेटा स्टोर करते थे। तो ये हमारा थोड़ा प्रीवियस मेथड है। देन नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग। तो in the third generation there are including some higher level language also, मतलब अभी first generation machine language, then second में हम assembly language से work कर रहे थे, but from third generation onwards there are some high level languages also includes like C, Basic, Pascal, ना। So what are the examples of third generation? IBM 360 series, PDP-8। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं यहाँ से। What was the impact of the third generation computer? That are computers became smaller, मतलब अब थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर साइज और कम हो गया। they became more cheaper, they became more accessible to business, university and government, means कॉलेज वगैरह भी अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है अफोर्ड कर पा रहा था। So operating system were also introduced, a very important operating system है ना। आप यदि किसी कंप्यूटर पे या any kind of device जिसपे आप ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो वो क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है हमारे मोबाइल में एक जान डालता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस है ना। So it introduced from third generation. So operating system were also introduced from third generation. Now come to the next fourth generation. So here what technology used? Microprocessor है ना। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर रिवॉल्यूशनाइज्ड अ कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर को फिर से इसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। मतलब अब कंप्यूटर का जो साइज है, मतलब पूरे सीपीयू को एक सिंगल चिप में, मतलब समझ सकते हैं आप कि कंप्यूटर का साइज हमारा फिर से जो है डिक्रीज हो गया, लेस हो गया। दिस वाज द एरा ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। मतलब फोर्थ जनरेशन का जो हमारा जनरेशन है वो हम पर्सनल कंप्यूटर एरा भी के नाम से भी जानते हैं। मतलब अब हम और आप जो है पर्सनल कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस जनरेशन? सो माइक्रोप्रोसेसर, VLSI, वेरी हाई स्केल इंटीग्रेशन चिप्स यहाँ पर यूज की गई। मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी बिकम कॉमन, मतलब तो कॉमनली हो गया था सेमीकंडक्टर, राइट। क्योंकि मेमोरी जो है थोड़ा सा कॉस्टली भी होती है, तो अब कॉमनली यूज, मतलब थोड़ा सा वो भी क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो कंप्यूटर की प्राइस रेंज भी क्या है, कम होते जा रहे हैं। देन इनपुट एंड आउटपुट के लिए GUI यूज किया जाने लगा। GUI मीन्स व्हाट? इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब हम अब विजुअलाइज करके कंप्यूटर पर, मतलब पहले कंप्यूटर क्या, हमको सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन, उस पे कुछ कमांड्स है ना। बट अब फ्रॉम द फोर्थ जनरेशन ऑनवर्ड्स हमको किस टाइप के कंप्यूटर मिल रहा है? GUI। मतलब अब हम अपने फोल्डर को देख पा रहे हैं, फाइल्स को देख पा रहे हैं, राइट। सो सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन आर Intel 4004, Apple II, IBM PC, etc. So what was the impact of these generation, these computers? Computers entered home, मतलब अब कंप्यूटर जो है हमारे घरों में, ऑफिस में है ना यूज होने स्टार्ट हो गए। मतलब हम अब अपने लैपटॉप्स जो हैं कॉमनली यूज करने लगे फ्रॉम द फोर्थ जनरेशन। So our present generation is fifth generation, मतलब प्रेजेंट की जनरेशन को हम AI जनरेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। सो अब जो है कंप्यूटर
they are now focusing on AI, artificial intelligence, expert system. Artificial intelligence means what? एक मशीन है, मशीन को हम इतना कैपेबल बनाने हैं कि वो खुद ही सारे डिसीजंस ले रही है ना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे ह्यूमंस टेंडेंसी वाले सारे वर्क जो है इजीली परफॉर्म कर रही है। एक्सपर्ट सिस्टम इज व्हाट? हमको कोई तबीयत हमारी ठीक नहीं लग रही, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम उनको अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, देन डॉक्टर टेक सम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड हमको जो है वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। बट अब कंप्यूटर ही आपका डॉक्टर बन गया है ना, कंप्यूटर ही आपका लॉयर बन गया है। आपको कुछ भी पूछना है, बस गो टू द एक्सपर्ट सिस्टम एंड ही विल बी आंसर। बस कुछ नहीं, आपको अपने फोन का रिचार्ज करना है फॉर इंटरनेट, है ना। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब अभी जो कंप्यूटर्स है, जो करंट जनरेशन है हमारी, 5th जनरेशन, वी आर इन 5th जनरेशन नाउ। तो यहाँ के अब इस जनरेशन कंप्यूटर्स किस पे फोकस कर रहे हैं? एआई, है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन 5th जनरेशन? दैट आर VLSI एंड ULSI, AI एल्गोरिदम्स, रोबोटिक्स, NLP, है ना, जो आप चैट जीपीटी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ NLP आल्सो, है ना। सो ये सारी चीजें हम करंट में देख रहे हैं। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है? एबिलिटी टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। अच्छा, पहले क्या हो रहा था? हमको कोई प्रोग्राम बनाना होता था तो हम कोडिंग कर रहे थे, तब हमें प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल रहा था। अब कुछ नहीं, सिंपल आप कंप्यूटर ऑन करो, किसी भी चैटबॉट पे या किसी भी परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी या एनी अदर काइंड ऑफ टूल्स आप लो और उसको बस अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, नो नीड टू राइट कोड, है ना, आप उसको अपनी प्रॉब्लम दो, कंप्यूटर जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस आपको दे देगा। So this is the major feature of 5th generation computer. Okay, IBM Watson, Google AI, modern supercomputers, these all are comes under the 5th generation computers. Okay, so what is the impact of 5th generation computers? So computers become capable of reasoning, speech recognition, and automation. Right? So ये सारे हमारे 5th generation के हैं। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड और ऐड करी है बियॉन्ड 5th जनरेशन, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर या एज अ रिसर्चर आपको हमेशा बियॉन्ड द लिमिट सोचना है ना, कि हमको आगे क्या, अब नेक्स्ट क्या। तो जो हमारी नेक्स्ट 5th जनरेशन है, इट विल बी बेस्ड ऑन AI, क्वांटम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑलरेडी हम इस पे वर्क कर रहे हैं और इन फ्यूचर जो है हम सेल्फ लर्निंग, मतलब कार तो ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज ने डिजाइन करी ली है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमारे फ्यूचर में ऐड होने वाली है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटिंग यूज की जाएगी, डीप लर्निंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, है ना। एप्लीकेशंस क्या क्या है अगर हम देखें तो इसके एप्लीकेशंस है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस, स्मार्ट हाउस, एडवांस रोबोटिक्स, मतलब आप घर में एंटर कर रहे हो, आपने दरवाजा खोल के जैसे एंटर किया, अपने आप आपका फैन जो है ऑन हो गया। आप दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, मतलब AC ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया। आप घर से बाहर जा रहे हैं, अपने आप जो है उसने सेंसर कर लिया AC को और वो ऑफ हो गया, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट होम्स। एडवांस रोबोटिक्स, है ना, आप अपने घर पहुंचे हैं तो आपका एक रोबोट जो है हेल्पर आपके सामने ट्रे लेकर खड़ा है। So these are the applications of 5th generation, beyond the 5th generation computers. For example, Google Sycamore, क्वांटम कंप्यूटर है, ये जो चैट जीपीटी, AWS, ये सारे जो है हमारे AI क्वांटम क्लाउड से रिलेटेड है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मशीन्स विल बी एबल टू परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको अगर याद होगा, जब भी आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हो और जब भी हम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है? कंप्यूटर हैज नो ब्रेन, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं है, नो फीलिंग, नो नथिंग। बट अभी आप इस जनरेशन कंप्यूटर उठाओ, है वो डिसीजंस ले रहा है ना, अपना दिमाग लगा रहा है ना, उसमें CPU जो है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो है वो अब वर्क करने लगा है। तो ये सारी चीजें जो है, तो नेक्स्ट जनरेशन, अभी तो बियॉन्ड 5th जनरेशन के बाद और भी अदर जनरेशन आएंगी जो हमारी जनरेशन आगे जाके पढ़ेंगी। तो आई होप आपको ये जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं चाहती थी कि बस आप एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा वास्ट मिलेगा आपको अदर सोर्सेस पे, बट यहाँ पर मैंने आपको एकदम पॉइंट वाइज क्लियर करने की कोशिश की है। देन now comes to the very important topic of ICT, that is binary language. 8 questions
कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, मतलब कन्वर्जन्स है ना, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये आपने देखा होगा। तो मैं इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश करूंगी। सो what is binary language, है ना? As we know that computer cannot understand human language directly, मतलब डायरेक्ट नहीं समझता वो, उसको समझाने के लिए भी बैकग्राउंड में कुछ वर्क होता है, that is binary. So they work in binary system. binary system का जो बेस होता है that is 2 which has only 2 digits, मतलब यहाँ पे 0 है and 1 है। कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही चीज आती है, या तो 0 या तो 1, ऑफ और ऑन। ओके, सो each 0 और 1 is called what? Bit, है ना? तो सपोज अगर लेटर ए है तो लेटर ए को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 0 0 0 0 1, है ना? सो व्हाई बाइनरी? बिकॉज कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या है? ऑन और ऑफ, है ना? देन नेक्स्ट मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी, बिट एंड बाइट। व्हाट इज बिट एंड व्हाट इज बाइट, है ना? तो एक्चुअली ये क्या है? ये स्टोरेज यूनिट है, मतलब जो कंप्यूटर जो है हमारे डेटा को स्टोर करेगा तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा? तो सबसे स्मॉल यूनिट होता है हमारा बिट, है ना? तो बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 इज अ बिट एंड 1 इज आल्सो बिट। अब नेक्स्ट इज बाइट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, मतलब जब 8 बिट्स मिलते हैं तब हमारा 1 बाइट का इंफॉर्मेशन, 1 बाइट जो है डेटा स्टोर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो आगे यहाँ पे 0 करके 8 बिट्स बनाए हैं, तो दिस 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट, है ना? इट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर A. देन देयर आर अदर ग्रुप्स आल्सो। निबल, निबल इज व्हाट? मतलब अगर 8 बिट को हम 1 बाइट कह रहे हैं, तो यदि हम 8 बिट को हाफ करते हैं तो उस हाफ बिट को हम क्या बोलेंगे? निबल। मींस निबल इज अ हाफ ऑफ अ बाइट। देन अगेन एक और टर्म यूज की जाती है, वर्ड्स। तो इट डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना, कि किस आर्किटेक्चर पर हम वर्क कर रहे हैं, 16, 32 और 64। तो वहां पर डेटा स्टोर करने के लिए भी एक और टर्म यूज करते हैं, वर्ड, है ना, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा या आगे हायर एजुकेशन में आप पढ़ोगे। So I know this is very easy. So यहाँ पर जस्ट मैंने आपको रिकॉल करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। लाइक अगर आप एक छोटा सा ईमेल टेक्स्ट है तो वो उसका स्टोरेज कितना होगा? केबी में, किलोबाइट्स में। अगर हम एक फोटो पे वर्क कर रहे हैं तो उसका स्टोरेज क्या होगा? मेगाबाइट्स में। इफ देयर आर अ मूवी, सो मूवी का जो स्टोरेज होगा वो किस में होगा? जीबी में, ना, गीगाबाइट्स में, 1 or 2 GB और मोर देन, थोड़ा सा ज्यादा भी चलता है ना, जीबीज में होगा। अब फुल लैपटॉप हार्ड डिस्क, मतलब एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क यदि है तो वो कितना डेटा स्टोर करती है? 500 GB टू 2 टेराबाइट, है ना? अगर क्लाउड स्टोरेज की बात करें, जैसे आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, तो ऑलवेज जो मिनिमम जो है इनका स्टोरेज कितना होता है? 15 GB, 1 TB टू यूजर्स। मतलब अगर आप जीमेल के यूजर हैं, है ना, जीमेल में आप गूगल ड्राइव यूज करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट आपको 14 या 15 GB जो है स्टोरेज मिलता है, जिसका आप यूज कर सकते हो फॉर अपने ईमेल्स एंड ऑल वर्क, है ना? तो ये कुछ रियल एग्जांपल्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाउ मच डेटा, किस क्वांटिटी में डेटा स्टोर हो रहा है हमारा, है ना? ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Then number system in ICT, very important topic of ICT. So as I already told you, computer understand only 0 and 1, that is binary number. So why it is used? It is used in data storage, CPU operation and programming and networking. So normally UGC नेट पूछता है, आप प्रीवियस से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आपको पक्के से मिलने वाला है आईसीटी से रिलेटेड। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे there are 4 types of numbers, है ना, in the context of computer science. One is decimal. Decimal means decimal number का बेस होता है 10, है ना? 10 means इसमें कितने डिजिट्स होंगे? 0 to 9। 0 to 9 के बाद इसका मतलब ये नहीं कि 9 पर 10 नहीं आना है। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल नंबर है वो 0 से 9 तक की रेंज, मतलब इनके कॉम्बिनेशन का कोई भी नंबर जो है डेसिमल नंबर कहलाएगा। देन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है हमारा? 2। तो इट वुड बी आइदर 0 और 1, है ना? तो यहाँ पे इसका बेस है 2, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 और 1 दो। सिमिलरली डेसिमल में भी 0 to 9, मतलब अगर आप काउंट करोगे 0 से 9 तो इट विल बी 10। सो इसका बेस क्या है हमारा? 10, बाइनरी का 2। ऐसा ही ऑक्टल के लिए, ऑक्टल का मतलब ही मीनिंग ही 8 होता है। तो 0 to 7 यदि हम काउंट करते हैं तो ये ऑक्टल, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि ऑक्टल की रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इट विल बी, इट इज 0 to 7।
हेक्साडेसिमल नंबर मींस जो है ये जो है 16 नंबर इसका बेस होता है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट्स होते हैं जो कि 0 से 9 तक जाएगा और A to F तक जाएगा। ये अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सो ये जो रेंजेस हैं ये बताती हैं कि ये रेंज तो है ही, प्लस इनके कॉम्बिनेशन थे, मतलब अगर ऑक्टल नंबर है तो यदि 362 है तो 362 कम्स अंडर द रेंज 0 to 7, तो दैट विल बी द ऑक्टल नंबर। तो इस तरीके से हम जो है नंबर सिस्टम्स को यहाँ पर क्लियरली समझते हैं कि यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा। नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, अभी हमने देखा कि इट हैज बेस 2 एंड इट हैज 0 और 1 नंबर। सो यहाँ पर जो है हम देखेंगे बाइनरी नंबर की, यहाँ पे एक्चुअली इस स्लाइड में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है एक्चुअली में, कि अगर हमको कोई नंबर गिवन है ना, और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 1011, ये हमें बाइनरी में दिया हुआ है, ये लिखने का टाइप होता है 1011 और यहाँ पे हमें 2 बेस दिया, मीन्स ये क्या है, बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पे हर एक नंबर का पोजीशन वैल्यू होती है जो कि स्टार्ट, क्योंकि इसका बेस 2 है तो जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो 2 की पावर 0, सेकंड पोजीशन होगी वो 2 की पावर 1, नेक्स्ट पोजीशन होगी 2 की पावर 2, द नेक्स्ट पोजीशन 2 की पावर 3, है ना। तो जैसे सपोज हमको किसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम जो है ये पोजीशन वेट वाली मेथड यूज करते हैं। जैसे यदि मान लो क्वेश्चन हमें आया एग्जाम में कि 1011 है, कोई गिवन है, हमको इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो हम सिंपली जो है लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, लास्ट से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर, क्योंकि पोजिशनल वैल्यू लेंगे 2 की पावर 0, लास्ट वाला 1 आ गया, 2 की पावर 1, देन दिस 1, 2 की पावर 2, देन दिस 1 एंड देन दिस। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 11, मींस 1011 को हम बाइनरी में इससे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और डेसिमल नंबर में 11, मतलब 11 को बाइनरी में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी प्रकार से सेम ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर मतलब बेस 8 है, रेंज 0 to 7 है, इसका पोजिशनल वेट क्या है, क्योंकि ये ऑक्टल है तो इसका बेस जो है हमारा 8 होता है, तो 8 की पावर 0, मतलब यहाँ ऐसे इसकी वेट स्टार्ट होंगे। तो यदि हमें कोई नंबर गिवन है और हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द क्वेश्चन। देखो 275 है ना, क्वेश्चन आएगा ये 275 कैसे ऑक्टल हो गया, ये तो डेसिमल जैसा दिख रहा है, बट आप देखो 275 जो है इट कम्स अंडर 0 to 7 रेंज, 0 to 7 रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर हमें बेस में 8 दिया हुआ है, इट्स मींस ये जो है ऑक्टल नंबर है। तो इस ऑक्टल नंबर को हमें फिर से अगेन डेसिमल में चेंज करना है, तो जब भी हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हम पोजीशन वेट्स लेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ 8 की पावर 0 इंटू विथ 5 दिस एंड दिस, और इस तरीके से हमें डेसिमल वैल्यू जो मिल जाएगा। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस है 16, रेंज इसकी 0 to 9 होगी एंड A to F, है ना। एग्जाम्पल अगर मान लो हमें 2F क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो इसका बेस 16 है तो हम 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 का 0 मल्टीप्लाई विद F, F को हेक्साडेसिमल को F मींस 15 होता है, ये अभी मैं आपको आगे टेबल में क्लियर कर दूंगी, तो आपका कंफ्यूज नहीं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करेंगे तो 2F जो कि एक हेक्सा वैल्यू है उसको डेसिमल में 47 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है। मतलब आप अगर किसी एक बुक को भी प्रेफर कर रहे हो तो लास्ट में आते आते हमको कंफ्यूजन हो ही जाता है, मैं भी इस कंफ्यूजन से गुजर चुकी हूँ, है ना। सो अगर मान लो कोई डेसिमल हमको नंबर दिया हुआ है और हमको उसको काय में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो जब भी हमें गिवन नंबर डेसिमल होगा, मतलब जैसे यहाँ पर हमको 25 दिया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, है ना। तो हमने यहाँ पे 25 लिया एंड यू कैन सी वेरी इजिली कि हम 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 25 को एक बार डिवाइड किया तो 12 आया, है ना। तो देन हमें जो है जो भी रिमाइंडर है, मतलब 2 1 2 2 2 4 और रिमाइंडर हमारा 1 यहाँ पे बच गया, तो हम यहाँ राइट साइड में नोट कर देंगे। देन 2 6 12, कुछ भी नहीं रिमेनिंग था तो हम यहाँ पे 0 लिख दिया। देन 2 3 6, कुछ भी रिमेनिंग नहीं था तो यहाँ पे 0 लिख दिया।
2 1 जा 2, वी आर लेफ्ट विद 1, सो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है ना, तो और फिर ये वाला जो 1 बचा उसको यहाँ लिख दिया। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में एक्चुअली ये अब जो भी हमारा आंसर होगा वो हम उसको नीचे से स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो नीचे से 11001, तो 25 जो कि डेसिमल नंबर है, बाइनरी में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट विल बी 11001। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर के लिए था। सेम जो है हम ऑक्टल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है, बट आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टूड, वेरी इजिली अंडरस्टूड है ये कि अगर यहाँ पर हमें कोई नंबर दिया है डेसिमल में और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हमको, तो हम उसका बेस 8 है, तो सेम हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे, उसके रिमेनिंग डिजिट्स को राइट साइड में लिख के रिवर्स ऑर्डर में फॉलो अप कर लेंगे। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। देन नेक्स्ट, अच्छा, कभी कभी हमें एग्जाम में जाता है हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन नंबर, मतलब सिंपल कन्वर्जन तो इट्स ओके, बट अगर मान लो हमको फ्रैक्शन नंबर का कन्वर्जन आ गया है ना, सपोज हमको क्वेश्चन आया है कन्वर्ट 25.32 which is base 2 number, base 10 नंबर जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, टेक इंटीजर पार्ट एंड डिवाइड बाय 2, मतलब सिंपली जो अभी हम सीखते आ रहे हैं, सबसे पहले हमको नंबर लेना है, उसको 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बेस 2 होता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हमारा जो है आंसर जो कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ अब टेक 0.32, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को लेंगे। फ्रैक्शन पार्ट को हमको क्या करना है, 0.32 हमने लिया, बट अब हमको क्योंकि किसमें कन्वर्ट करना है इस नंबर को, बाइनरी में, और बाइनरी का बेस कितना होता है यहाँ पर 2, तो 0.32 इज मल्टीप्लाई बाय विच 2, तो 0.32 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके रिजल्ट को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब नोट डाउन हमने कर लिया। नोट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो इंटीजर मतलब इसके पॉइंट के पहले इंटीजर वाला जो पार्ट है 0, तो 0 को हम यहाँ पे इंटीजर पार्ट को यहाँ पे लिख लेंगे। देन अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, वट एवर द वैल्यू, हम 0.64 को उठाएंगे, है ना, उसके इंटीजर पार्ट को छोड़ के सिर्फ पॉइंट वैल्यू को उठाना है, तो हम 0.64 को उठाया, अगेन मल्टीप्लाई विद 2, देन वी विल गेट व्हाट 1.28। अब इंटीजर वाला पार्ट इसका क्या है, 1 है, हमने इसको 1 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर से अब हमने पॉइंट वाला पार्ट उठाया, फ्रैक्शन वाला पार्ट 0.28 लिया, मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन वी टेक द इंटीजर पार्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वाले नंबर को, और जो है सिंपली इसको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली यहाँ पर जो है 010, मतलब अगर यहाँ आंसर देखें तो 11001 इज द आंसर ऑफ 25 एंड 0.0101 मतलब आप अपने आंसर से मैच करते, मतलब क्योंकि अब तो ये कंटिन्यूसली आएगा क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये तो आगे ही बढ़ती है, तो हम एक पर्टिकुलर रेंज तक इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो अगर एक्सक्यूज मी मैम, sorry ma'am, interrupting in between. Ma'am, if you could means put on your video into on mode for some time, as we have not even a single pic of yours for today's session. Okay ma'am, sure ma'am. Thank you, ma'am. Yes ma'am, yes. Am I visible, ma'am? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Okay. Okay. So this is the conversion of fraction number. Now we proceed for the next slide. Actually, my slides are not moving. 1 second. Okay. ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप इस टेबल को बहुत अच्छे से देखेंगे। देयर आर 2 टेबल्स। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं और हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज जो है इसकी ले सकते हैं ना। तो जो हमारी फर्स्ट टेबल है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्टल डिजिट विद देयर करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर्स, एंड द सेकंड टेबल इज व्हाट, इट्स अ हेक्साडेसिमल डिजिट विद द करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज, है ना। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टेबल को अगर आप समझ गए,
है ना। तो बहुत इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ऑक्टल नंबर्स जो है हमारे 0 से 7 के रेंज में, अब यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्योंकि 8 हर एक बिट की, वैसे तो व्हेन आई वाज अर्ली लर्नर, जब मैंने नया नया सीखा था तो इट्स वेरी इजी कि जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसमें पहले 0 1 0 1 0 1 लास्ट तक हमने इसको राइट अप किया, देन अगेन 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, देन अगेन 4 टाइम्स 0। अब मतलब बट जब हम आगे उसको एक्सप्लोर करते हैं तो वी गॉट टू नो कि व्हाई इट्स हैपेंड, है ना, क्यों हमने ऐसा यूज किया। बिकॉज यहाँ पर बाइनरी का जो बेस है 2 है ना, एंड वी स्टार्ट विद पोजिशनल वैल्यू, वेट्स वैल्यू। सो यहाँ पे 2 की पावर 0 मींस 1, तो यहाँ वाली सारी वैल्यूज हमारी देखो 0 1 0 1 होंगी, ठीक है। देन 2 की नेक्स्ट पोजिशनल वैल्यू हमारी क्या है, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब अब यहाँ पर जितनी वैल्यूज हमारी होंगी क्या होंगी, 0 0 1 1 0 0 1 1। देन 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, मतलब 4 मींस यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1 होगा, राइट। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3, है ना, यहाँ पे एक नंबर है हमारा 3, तो अगर आप 3 के करस्पॉन्डिंग वंस देखें, मतलब 3 में एक 1 ये है और एक 1 ये है, तो आप अगर इसको देखो कि दिस वन इज बिलोंग्स फ्रॉम 2 एंड दिस बिलोंग्स फ्रॉम 1, और जब आप इस 2 और 1 को ऐड करोगे तो इसका इक्वल भी 1 ही आएगा, सॉरी 3 आएगा, है ना। सेम फॉर 5, सेम फॉर 6। तो सेम यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल में टेबल, सेकेंड टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी हमें 0 से लेके 9 तक, और फिर जैसे कि हमने रेंज बताई थी कि हेक्साडेसिमल की रेंज कितनी होती है, 0 से 9 एंड A to F, क्योंकि 10 का मतलब इन कंप्यूटर वी कंसीडर एज इन हेक्साडेसिमल एज A B C एंड सो ऑन। तो A B C D E F तक यहाँ पर रहेगा। इसको भी हम करस्पॉन्डिंग देखें तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 0 1 पोजिशनल वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 1 मींस हमको 0 1 का कॉम्बिनेशन रखना है, 0 1 0 1 0 1 अप टू लास्ट। देन नेक्स्ट इज 2 की पावर 1 मींस 2, मतलब हमें 2 2 को पेयर बनाना है, 2 zeros 2 1s, 4 0 4 1s, है ना, 8 zeros एंड 8 1s। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये जो है पोजिशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल क्रिएट कर ली, जो बहुत इजी होती है। आई थिंक कुछ सेकंड्स में ही आप एग्जाम अपने कॉपी के पीछे ड्रॉ कर लो, है ना, क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ कर सकते हो आप आराम से, और फिर उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पर भी आप देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 मींस आप इसे करस्पॉन्डिंग 1 देखेंगे, एक 1 ये है जिसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 8, और एक 1 ये है जिसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 1। तो जब आप इस 8 और 1 को ऐड करोगे तो इट इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपके सामने 1 1 0 लिख गया है, तो 1 1 0 देख के आप पूरी टेबल तो बनाओगे नहीं, तो आप ये पोजिशनल वैल्यू याद रखोगे कि फर्स्ट वैल्यू 1, देन 2, देन 4, देन 8। तो 1 1 0 यदि है तो 1 मींस 4 एंड दिस अगेन 1 मींस 2, तो 4 और 2 मींस जो है 6, है ना। तो 1 1 0 इज द वैल्यू ऑफ 6। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत बहुत मतलब अगर आपको ये चीजें आप खेलने लग जाओगे नंबर्स के साथ में, है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, कर्सर वर्क नहीं कर रहा है, ओके। So now the conversion of binary to octal and hex। अगर मान लो हमें कोई नंबर, अब थोड़े से हम कन्वर्जन देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे, ये वाले टॉपिक को। तो जैसे मान लो हमें बाइनरी से ऑक्टल या हेक्स में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है। अभी जो हमने अभी देखी टेबल, तो यहाँ पर क्या है टेबल में, ये टेबल हमारे पास बनी हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल। तो हमने देखा कि ऑक्टल में पोजिशनल वैल्यू मतलब 8 के लिए 3 बिट्स का यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन है, सपोज हमारा क्वेश्चन है 1 1 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम ऑक्टल के लिए 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर लास्ट से देखो लास्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग। तो एक हमारा 1 0 1 बन जाएगा, एक 0 1 1 से बन जाएगा, है ना। तो 1 0 1 को जो है हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, if we go through the previous table, है ना, और 1 1 0 जो है 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बाइनरी नंबर होगा हम मतलब डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस टेबल हम डायरेक्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल डिजिट में। सेम फॉर द
हेक्सा ऑल्सो, यहाँ पे अगेन हमें बाइनरी नंबर दिए हुए हैं और हम यहाँ पर जो है इन बाइनरी नंबर्स को, क्योंकि हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्सा रिप्रेजेंट्स 4 ग्रुपिंग पोजिशनल वैल्यूज यहाँ पे हमें लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 बिट्स की लास्ट से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, तो इस तरीके से हमने लास्ट से ग्रुपिंग करेंगे, तो दिस इज 6 एंड 1101 अगर हम प्रीवियस टेबल में देखें तो 1101 जो है 1101 इज स्टैंड फॉर डी। ओके, सो इस तरीके से जो है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्सा है ना, तो मैंने एक ही साइड पर आपको दोनों कन्वर्जन एक साथ बता दिए हैं। देन नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। सपोज हमें ऑक्टल डिजिट दिया हुआ है, मतलब 57, देखो 5 और 7 इज कम्स अंडर द रेंज ऑफ 0 to 7, सो 57 इज ऑक्टल डिजिट है ना। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी सिंपल है, डायरेक्ट टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारे ऑक्टल डिजिट्स हैं 5 जो है 5 जो है हम टेबल जो ऑक्टल टेबल की करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज है, हम देखेंगे 5 को हम 101 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 7 को 111 से। देन हम जो है 5 7 को एक साथ यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पर डायरेक्टली कुछ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। देन सेम विद हेक्सा, अगर हेक्सा से हमको बाइनरी में कन्वर्जन दिया हुआ है तो जो भी हमारी हेक्स वैल्यू है हम उसको हेलो, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर तुलसी बंजारे सर, काइंडली आप अपना माइक ऑफ करें सर। तुलसी बंजारे, आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम, बंजारे सर की माइक ऑफ करिए सर। आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम, वालिया सर, वालिया सर, आर यू देयर? I'm sorry for the interruption, ma'am. In a while, we'll be sorting it out. Walia, sir. I request the technical. Shipra, ma'am, are you there? Shipra, ma'am. Ma'am, kindly request Walia sir. Yes, ma'am, kindly request Walia sir to mute sir's mic. Ma'am, I'll mute from my side. Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. may I continue, ma'am? Yes, ma'am. Please go ahead. Okay. Thank you, ma'am. So similarly, we can do with hex to binary conversion. हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन, जहां पर हम 4 बिट की ग्रुपिंग करके जो है डायरेक्ट 3 और 1 को टेबल से ट्रैक करके यहाँ पर जो राइट डाउन करेंगे और हमारे जो है इजीली हेक्स वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ओके, इतने सारे कन्वर्जन देखने के बाद एक कुछ ट्रिक्स है जो मैंने रेडी किए हैं आपके लिए। तो आप कुछ चीजें जो है मेमोराइज कर सकते हैं, जैसे आप मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स जाते हो, शॉर्टकट रेशियो कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है, सेम विद बाइनरी नंबर्स आल्सो। तो जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट यदि इनको रखो कि 2 की पावर 3 इज 8 एंड 2 की पावर 7 इज 128, तो बहुत इजी हो जाता है आपको सॉल्व करने में, है ना। हेक्सा मेमोरी है तो A मींस 10 है, F मींस 15 है, तो कुछ चीजें यदि हमें याद होती है तो हमें सोचने में या कैलकुलेट करने में, टेबल ड्रॉ करने में टाइम जो हमारा बच जाता है। और इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जाम हम समझते हैं कि सेकंड्स टू सेकंड्स कितना इंपॉर्टेंट होता है हमको जो है आंसर्स को फाइंड आउट करने में। सो यहाँ पर कुछ बाइनरी शॉर्टकट्स हैं। कुछ बाइनरी शॉर्टकट क्या है कि अगर मान लो आपको कोई नंबर दिया हुआ है ना, आपको कोई नंबर दिया है कंटिन्यूअसली 1 के साथ, मतलब यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स 1 लिखे हैं, बट अगर मान लो 7 टाइम 1 है या मोर देन एनी टाइम्स ऑफ 1 है, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं, लिमिटेड नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी यूज दिस फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1, मतलब जितने भी हमारे 1s हैं, मतलब यहाँ पे हमें कितने 1s है, 4 है, तो n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ 1s in given number. So यहाँ पर हमारे 4 numbers हैं, तो when we put this n value to this formula, so it becomes 2 की power 4 minus 1, then यहाँ पर हमें जो है 15 नंबर जो है यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। सो ये ट्रिक है जो कि एप्लीकेबल है जब हमें कंटिन्यूअसली 1 हो, तो मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 1 1 इज 50, ठीक है।
नेक्स्ट इज ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बनाई है, मतलब आफ्टर हैविंग सो मच एक्सरसाइजिंग विथ नंबर कन्वर्जन वी आई हैव ड्रॉन सम कंक्लूजन दैट इज जब भी कोई नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, सपोज हमको कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उस डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जो पोजिशनल वैल्यू, जो पावर मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो हम लोग यूज करेंगे। कंफ्यूज होंगे क्योंकि इतनी सारी मेथड्स याद रखना बहुत टफ हो जाता है कि विच मेथड्स इज अप्लाई ऑन विच टाइम, है ना, कब हम कौन सी मेथड यूज करें। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल जो भी हमारा डेसिमल नंबर होगा, अगर हमको बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्जन आ रहा है फ्रॉम डेसिमल टू अदर दीज थ्री, वी यूज पावर मेथड। देन इसका जस्ट अपोजिट, अगर मान लो हमको बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में नंबर दिया हुआ है, तो अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड, मतलब जो हम ऑक्टल के लिए 3 की ग्रुपिंग कर रहे थे और हेक्सा के लिए 4 की ग्रुपिंग कर रहे थे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट वो वैल्यू जो यूज कर सकते हैं। देन इफ यू वांट टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, अगर हमको कोई बाइनरी डिजिट को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम या तो एक सिंपल सा है, हम टेबल का यूज कर लें, है ना, वी कैन यूज 3 बिट डायरेक्टली, है ना, या फिर एक मेथड क्या है कि हम पहले बाइनरी को डिजिटल में कन्वर्ट करें, देन डिजिटल को ऑक्टल में, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो या एक मीडिएटर है डेसिमल, मतलब हम पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और डेसिमल में कन्वर्ट हो तो पता है कि डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद हमको अदर कन्वर्जन चाहिए, तो हम पावर मेथड का यूज करने वाले हैं। सो अगर हम ये कर पा रहे हैं हमारे पास तो बिल्कुल अच्छी बात है, अदरवाइज अगर हमको टेबल आती है, टेबल हमने सीखी और टेबल से यदि डेटा हमको इंटरप्रेट और वैल्यूज लेते आ रहा है तो बहुत इजीली आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्सा, तो अगेन हम यहाँ पे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, है। बट अल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू, you make a group of 4 bit and we use direct hexa table for the solution. Similarly, octal to binary, octal to hexa या hexa to binary या hexa to octal convert करना है तो हम पहले उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड्स आई प्रेफर कि आप शॉर्टकट मेथड यूज करें, आई सजेस्ट, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस मेथड का यूज करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम को कहीं और दूसरे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, राइट। सो okay, now the next term is in ICT is intranet and it is a प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क। मतलब हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम जनरली इंटरनेट सुनते हैं। इंटरनेट हमको पता है कि इट इज अ वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल सर्विस, है ना, दैट ऑल आर सर्व, है ना, इंटरनेट जो है सभी को सर्व की जा रही है। सो व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट इज अ प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क, है ना, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज है, कंपनीज है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, तो उनका कोई प्राइवेट नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। अच्छा, क्यों यूज करते हैं भाई? क्योंकि आपको और मुझे पता है कि आज के टाइम पे हमारा डेटा सिक्योरिटी इज वेरी हाई कंसर्न इन दी करेंट टाइम। तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम जो है प्राइवेट नेटवर्क्स, इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के या आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज या मेंबर्स ही एक्सेस कर पाए, तो वी गो टू द इंट्रानेट, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के जो कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क्स होते हैं या कोई ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है तो he or she that institute prefer intranet. Then next is ओके, ईमेल। ऑलवेज एक क्वेश्चन आपको आईसीटी से ईमेल का मिल ही जाएगा, है ना, कि ईमेल में जो है किस टाइप की सर्विस यूज कर रही है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जा रहे हैं। सो इट इज वेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल, मतलब अगर आप किसी ऑफिशियली या प्रोफेशनली वर्क पे हैं तो सारे कम्युनिकेशन जो है आपके ईमेल के थ्रू ही होते हैं। एंड आई नो, मतलब इवन ऐसा कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं होगा जिसके पास अपनी ईमेल आईडी नहीं होगी, है ना, बिकॉज विदाउट दैट वी कांट एक्सेस एनी इंटरनेट सर्विसेज nowadays, right? So there are some components, email addresses, inbox, subject, attachment, तो ये हमको मालूम होने चाहिए, है ना। send means spam means what particular kind of words जो है spam की कैटेगरी में आते हैं, तो अगर ऐसे वर्ड्स आपके मेल में इंक्लूड है तो वो जो है एज अ स्पैम कंसिडर किए जाएंगे, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं एंड वी आर अनेबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर मैसेज एंड दैट मैसेज विल बी इन दी स्पैम फोल्डर, वहां पे हमको स्पैम में मिल जाएगा। तो कुछ कंटेंट्स हैं जिसको एज अ स्पैम, तो ये सारे वर्ड्स जो है, टर्म्स जो है, हमको
मालूम होने चाहिए, बिकॉज देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम दैट टॉपिक्स, है ना। सब्जेक्ट मीन्स जब भी कोई ईमेल हम क्रिएट करते हैं तो वो ईमेल किससे रिलेटेड है, उस ईमेल का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, दैट विल कम्स अंडर इन सब्जेक्ट। अटैचमेंट मीन्स यदि कोई अटैचमेंट हम कर रहे हैं, है ना, सो देयर आर सम एडवांटेजेस, फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव रिकॉर्ड, है ना। अच्छा, मेन थिंग इज सीसी, बीसीसी, अटैचमेंट एंड स्पैम। अच्छा, ये तो इजी है, अटैचमेंट स्पैम अगेन रिपीट हो गया, बट यहाँ पे जो सीसी एंड बीसीसी है ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब जब हम मल्टीपल लोगों को मेल सेंड करते हैं, सपोज हम किसी एक बंदे को मेल सेंड कर रहे हैं और हमने किसी और को भी भेजना है, तो सीसी में हम उसका एड्रेस जो है डाल के उसको सेंड कर सकते हैं। इट विल बी विजिबल टू ऑल द रिसीवर्स कि हमारे अलावा किस किस को ये कॉपी जो है मेल की सेंड की गई है। बट इन बीसीसी दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना, फुल फॉर्म भी इसका आ जाता है। तो यहाँ पर जो है यदि हम बीसीसी में किसी का एड्रेस डाल रहे हैं तो दैट इंडिविजुअल्स डजंट नो कि मेरे अलावा भी किसी और को भी सेंड किया गया है। तो ये थोड़े से फीचर्स होते हैं जो कि हमको यूज टू होने चाहिए ईमेल से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो नाम ही है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर आइडियाज एंड अदर थिंग्स शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेटिंग यूजिंग वॉइस ओनली, मतलब इंटरनेट का यूज तो ऑब्वियसली होगा ही, बट यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वॉइस है, दैट इज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। सो वेयर दीज सर्विस इज यूज्ड इन मीटिंग्स, डिस्कशन, इंटरव्यूज, है ना, लाइक फोन कॉन्फ्रेंस कॉल्स है, व्हाट्सएप वॉइस कॉल है। आजकल आपने देखा होगा ग्रुप में ग्रुप वॉइस कॉल का ऑप्शन दिया जाता है, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो next is video conferencing. Just audio is replaced with the video communication. Audio I mean include with the video, audio plus video in real time, है ना। कहाँ कहाँ ऑनलाइन क्लासेस में, वेबिनार्स में, रिमोट मीटिंग्स में, इवन हमारी जो भी इट इज ऑल्सो हमारी FDP इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, दीज आर द टूल्स which are used in video conferencing. So what are the advantages? Like saves times obviously. हम जहाँ पर है वहीं पर अपने मीटिंग्स को स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स हमको वहीं पर पहुंचना नहीं है, है ना। दैट इज सेव, इट सेव्स टाइम्स। विजुअल इंटरेक्शन, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इवन हम मतलब रिमोट स्टेशंस मतलब दूर दूर हैं, है ना। यूजफुल इन डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब अभी जो है ऐसे स्टूडेंट जहाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वो कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इज डिजिटल, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। सो एज वी ऑलरेडी लर्न ऑल दीज टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव्स एंड लाइक स्वयं, है ना। स्वयं जो हमारे इंडिया का खुद का प्लेटफॉर्म है जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज, सर्टिफिकेशन यहाँ करता है, मतलब एनीवन कैन रजिस्टर्ड इन दिस स्वयं पोर्टल एंड गेट सर्टिफाइड कोर्स, है ना। स्कूल्स और यूनिवर्सिटी लेवल के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होंगे। देन सिमिलरली स्वयं प्रभा जहाँ पे 40 TS टेबल करेंटली रन कर रहा है, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट इज NPTEL, है ना। यहाँ पे एक लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इनके फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखेंगे फॉर एग्जाम पर्पस, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछते हैं और आपको डायरेक्ट जो है 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। NPTEL स्टैंड फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ठीक है। सो ये किस टाइप का, ये टेक्निकल एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं, जो कि ये जो आप देख रहे हो 7 जो है हमारे बॉम्बे, दिल्ली के IITs ने मिलकर इसको बनाया है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय IISc बैंगलोर ऑल्सो। दे आर प्रोवाइडिंग द कोर्स, है ना, एंड बेसिकली इसका फोकस इंजीनियरिंग एंड साइंस पे है। Then again next term is National Digital Library of India. It is a central digital repository of educational resources. मतलब सारे के सारे हमें centralized form में जो है सारी लाइब्रेरी से रिलेटेड बुक्स, जर्नल्स, सारी थीसिस वगैरह, आर्टिकल, सारा कुछ हमें एक ही सेंट्रल पे मिल जाएगा अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ NDLI इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट, है ना। EPG पाठशाला है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है, कुछ वर्चुअल लैब्स हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास महंगे महंगे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के पैसे नहीं, बट वी कैन परफॉर्म अवर एक्सपेरिमेंट विद द यूज ऑफ वर्चुअल लैब्स आल्सो, राइट। सो these are some digital initiatives, है ना। these are the list of digital initiatives. ये सारे मैंने इस प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज
Okay, ICT in government, which is the next topic. So what is governance, है ना, मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट ने जितने भी हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है उन सारी सर्विसेज को सभी यूजर्स को एफिशिएंटली डिलीवर करने का काम जो है ई गवर्नेंस कहलाता है ना। तो ये क्या करता है, ये जो है हमारी सर्विसेज जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की सर्विसेज है वो प्रॉपर्ली कैसे डिलीवर हो रही है ना, उसमें हेल्प करता है। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, बेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन, है ना। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये हमें ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिजिटल आइडेंटिटी हमको प्रोवाइड करता है, स्मार्ट सिटीज, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये सारे जो है एप्लीकेशंस है किसके, आईसीटी इन गवर्नेंस के। नेक्स्ट इज कुछ की इंडियन डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स है। तो आप जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन है, आधार है ना, एवरीवन हैज देयर यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज आधार, है ना। देयर इज उमंग ऐप, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के, है ना। ऑनलाइन रेलवे पासपोर्ट टैक्स सिस्टम, ये सारी चीजें जो है इसके अंडर में आएंगी। एंड बेनिफिट्स क्या है हमको, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड ना। ट्रांसपेरेंसी आपने देखा हो कि आपके आधार नंबर से आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है और इस तरीके से हमें गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज है वो इजीली मिल जाती है। इवन आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम लेने के पहले आधार वेरिफिकेशन करके आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, देन यू आर अलाउड टू गिव एग्जाम। सो ये सारे क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, स्पीड, रिड्यूस करप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सिटीजन एम्पावरमेंट, मतलब हमारे एक प्रकार से ये बहुत अच्छी अप्रोचेस है कि ये सारी चीजें जो है इनका यूज करके हम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को जो है ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज देयर आर सम कुछ यहाँ पर ग्लॉसरी ऑफ आईसीटी है, कुछ वर्ड शब्दावली है जो आपको बिल्कुल मालूम होने चाहिए, है ना। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर दी है, आप इसको एक बार जरूर रीड करें, है ना। अच्छा, एब्रीविएशन, क्योंकि आईसीटी के सिलेबस को देखो तो फर्स्ट में ही हमें एब्रीविएशन से, तो आईसीटी में बिल्कुल एब्रीविएशन हमें पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स पूछते हैं, लाइक पीडीएफ है तो व्हाटएवर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ना। आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका भी क्वेश्चन, इवन यूजीसी नेट, अपार्ट फ्रॉम यूजीसी नेट, है ना, अदर एग्जाम्स आल्सो इंक्लूड दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना, एब्रीविएशन से रिलेटेड। तो ये सारे हैं, जैसे सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से सारे के सारे जितने भी एब्रीविएशंस हैं तो आप इसको जरूर एक बार रीड करें ना, ये आपको एग्जाम में आंसर्स जो है मार्क्स गेन करने में, अटेन करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज these are also again there are so many some slides including these abbreviations, okay। So now we come to the questions ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हमारे आईसीटी से रिलेटेड। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द कंप्यूटर नेटवर्क। मींस मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, है ना, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस which devices are computer connected to each other। तो आंसर क्या हो जाएगा, is anyone answer this question? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बता सकते हो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इनके आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेब ब्राउजर नहीं है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? इज इट सफारी? ओके, you mean Safari is not a web browser, right? Anyone else? First answer star. First answer is star topology, okay। मतलब ऐसा डिवाइस जो हर एक अदर डिवाइस से कनेक्ट हो, दैट इज स्टार, है ना। और एनीवन एल्स? ओके, let us find the answers of these questions। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मैश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, है ना। मतलब टोपोलॉजी में हम बताते हैं कि जो डिवाइसेस हैं आपस में कैसे टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो स्टार टोपोलॉजी जो है, जब डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो दे आर मेकिंग स्टार शेप, है ना, स्टार फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैश टोपोलॉजी जो है, मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर, हर नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है, दैट व्हाई इट्स कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। और हमारा क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है कि डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस, मतलब एक कम्युनिकेशन डिवाइस हर डिवाइस से कनेक्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। Then next question is which of the following is not a web browser। अब यहाँ पे बहुत आराम से आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेब ब्राउजर। और ऑप्शंस देखिए तो ओपेरा इज अ वेब ब्राउजर,
Safari is a web browser, Firefox is a web browser, but the next option is what? Google. Google is not a web browser, Google is a search engine. So this is the main difference, है ना? तो यहाँ पर हमको मतलब है चीजें सारी सिमिलर, ऑब्वियसली हम वेब ब्राउजर के अंदर ही क्रोम को यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें एट द टाइम पे जो हमें सही आंसर क्लिक करना है, सही आंसर हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा हमारा? वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द बैचिंग लिस्ट। अगर क्विकली कोई बताना चाहे तो बिल्कुल आई वेलकम यू। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देयर आर सम recognition systems are given, MICR, OCR, OMR and barcode reader, and their corresponding values are given in list 2, है ना, कि MICR is used for which purpose, OCR is used for which purpose, and so on. So is there anyone who wants to give the answer? I think it's time taking, I know. मैं इसका भी इजी वाले क्वेश्चन का आंसर दे देना, मैं इसको रिवील कर देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 4th नंबर का। 4th मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये वाले क्वेश्चन ना मतलब यूजीसी नेट के जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, मैच दी कॉलम्स। इवन सिर्फ पेपर 1 में ही नहीं, पेपर 2 में भी अगर आप कोई सब्जेक्ट पेपर आप दे रहे हैं तो आपके टॉपिक्स में देखना हमेशा 2 लिस्ट होंगी, एक लिस्ट लेफ्ट साइड, देन उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज राइट साइड पे। तो अब हमें क्या होता है, ये बहुत इजी तरीका है, क्योंकि देखो हम तो पढ़ाई करके ही जाते हैं ऑब्वियसली, बट कभी कभी ऐसा होता है एज वी आर ह्यूमन थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। बट ये जो मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, हमें क्लियरली क्लिक कर जाते हैं हम लोग कि क्या जो है हमारा आंसर होता है। यहाँ पर देखो, जैसे अगर मान लो MICR है, MICR इज फॉर रीडिंग द नंबर्स फाउंड ऑन अ बैंक। जैसे अगर मुझे मिलेगा तो मुझे MICR के बारे में पता है कि जितने भी चेक्स होते हैं उसमें MICR नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट करके जो है करेक्ट आंसर जो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following are 4 guiding principles in the development of higher education? अब इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन के प्रोवाइड करने वाले जितने भी सर्विसेज, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ AICT। AICT अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आंसर दीस क्वेश्चंस? एटलीस्ट क्वेश्चन 4 का आंसर तो आई थिंक कोई ना कोई दे ही सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICT? Second option. Second option, All India Council for Technical Education. Okay, let's see what is the answer. Okay, right. Second option is very right. And here in the question number 3, the right answer will be accessibility, accountability, and equality. Third options will be there. And we are at the end of the session. There are some last left questions. Are NPTEL का stand what it stand for? अगर कोई quickly answer देना चाहता है तो please answer it. And conversion of 1-0. दोनों आंसर अगर कोई जल्दी से बता दे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब 2 1 0 का 2। अच्छा, 1-0 का 2 है। ओके, वेरी गुड। एंड NPTEL का फुल फॉर्म किसी को यदि बहुत जल्दी क्लिक कर जाए तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ओके, सो जो NPTEL का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। मैं आपको बता रही हूँ ना, जितनी भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं उनके फुल फॉर्म्स, इनिशिएटिव्स के फुल फॉर्म्स हमको बिल्कुल आने ही चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस अराइज होते हैं, है ना। और यहाँ पे भी डेसिमल नंबर अगर देखिए, अगर हम पोजिशनल वैल्यू से देखें तो 101 है ना, तो ये 8421 यानी फर्स्ट वाला 1 जो है इसकी पोजीशन वैल्यू 8 है और थर्ड वाले की पोजीशन 2 है। तो एंड 8 और 2 + 10 इट्स मींस इसका आंसर हम बिना डिवाइड किए 2 से हम ये देख सकते हैं कि इसका जो आंसर जो है 1010 होगा, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली दीस क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना। सो ये लास्ट ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। तो आई थिंक ये आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी है कि आपको जो है ट्रांजिस्टर्स फर्स्ट आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ। ये तो मुझे लगता है कि मतलब मैंने जितने बार भी यूजीसी नेट अटेम्प्ट किया तो मुझे ऐसे क्वेश्चन तो पक्के से मिले हैं, है ना। ये क्वेश्चन तो मुझे मिलता ही है ना। So which of the following is correct sequence of increasing access time of storage memory? मतलब हमने स्टोरेज तो मैं पढ़ ली, हमने रैम पढ़ लिया, कैश पढ़ लिया, हार्ड डिस्क पढ़ लिया, बट अब उन्होंने सीक्वेंस पूछ लिया है कि एक्सेस टाइम की सीक्वेंस क्या है। तो इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? एक तुक्का ही लगा सकते हैं हम। सेकंड
सेकेंड। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। ओके, so it's for question 8. Question number 8 answer is A. 1. ओके ओके, तो देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो फर्स्ट आंसर वाज ट्रांजिस्टर, विच इज वेरी वेरी राइट, है ना। एंड द सेकंड आंसर इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम ऑफ स्टोरेज। तो इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन मतलब सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा एक्सेसिबल कौन सा होगा। अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं रजिस्टर्स। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्स जो है सबसे पास में होते हैं हमारे मेमोरी की। जब भी हम मेन मेमोरी में या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जो सीपीयू के सबसे पास वाला जो डिवाइस होता है दैट इज रजिस्टर्स। तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम मतलब अगर कोई भी डेटा हमारा हम क्विकली कहीं स्टोर करें तो रजिस्टर में स्टोर करेंगे क्योंकि वो बहुत पास में होता है ना। देन उसके बाद जो है सी मींस कैश मेमोरी, मतलब ये पूरा हायरार्की, रजिस्टर्स, देन कैश मेमोरी आएगी, देन जो हमारा रैम आएगा, देन हमारा हार्ड डिस्क आएगा, देन हमारा मेमोरी टेक। मतलब ये हायरार्की चलती है कि इस लेवल में, मतलब अगर हमारा डेटा रजिस्टर में तो जल्दी एक्सेस होगा, कैश में है तो विद कंपेयर टू अदर थोड़ा जल्दी। देन उसके बाद इस तरीके से एक्सेस टाइम, मतलब यहाँ पे इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे जो है स्टोरेज कैपेसिटी के बेस्ड पे भी सीक्वेंस पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ अगर आप एक्सरसाइज करोगे, मतलब आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, मतलब दिस इज वेरी नोटेबल टिप्स फॉर यू कि आप प्रीवियस एग्जाम्स को जरूर से जो है वो करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने आपके कुछ टॉपिक्स को समझाने में आपको इजी किया होगा। एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Anjali, Dr. Anjali Chaudhary, ma'am. We are actually gratified by your session. I can bet upon this that even the participants, still those who are left, they were enjoying a lot. They were actively participating. Ma'am, I want to say one thing. Actually, I am your students. मैंने आपसे पढ़ा है, ma'am. Actually. By face only, I could recognize that. I was asking the organizing secretary Renu ma'am that actually, I know ma'am. Okay, when I admitted in Nachiketa College, then आपने मुझे वहाँ पर पढ़ाया है और मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ. So nothing could be more honorable than this. That if some mentor is recognizing a student like this, I'm honored today, ma'am. Still, I'll be calling you ma'am because you are our expert for today's session. Thank you so much. And just to give you a formal note of gratitude, I would request the organizing secretary of our program, Miss Renu Vishwakarma ma'am, to convey a vote of thanks to you. Ma'am, over to you. थैंक यू सो मच अंजलि मैम, थैंक यू सो मच। आप इतने शॉर्ट पीरियड से जुड़े और पूरे ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आपने इतना और इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप सभी मतलब अपने लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। Thank you to you. I can understand the exceeding of time. Thank you, ma'am. मैम